every Sunday, 8 o'clock to 9 o'clock, there is a session by like renowned guys on Jainism. So last week, Nokar Mantra का मतलब राजपूत श्रीमंत. Come. Naresh ji, over to you now. Thank you, Neeraj ji, and सबको जय जिनेंद्र. On behalf of Jainin team, I welcome everyone in today's session. So it's a little bit about the Jainin, though we already know it's a Jainin insight for the modern world. And what is the Jainin knowledge series? This is an ongoing series of discussions around various themes from the scriptures conducted by group members keen to share their learnings and relevant life experiences with the group. And what is the basics of Jainism series? The comparison of basics, concept, principles of Jain religion and their practical application in daily life. The most important is a practical daily life. So today is the session 4. This series started by the Neeraj, then the Dr. Vibha, now the session 4. Now today's speaker is Mr. Piyush Doshi. And introduction about Piyush ji is like he has recently moved to Gurgaon from Mumbai and is working with the Fairing Capital as a director and head of the portfolio team. Before this, he worked in Gurgaon as well as a partner with PwC Strategy, and he has over 20 years of consulting experiences with PwC, Booz Allen and BCG, where he helped clients develop and implement growth strategies or improve business and performances. He also worked with Spencer Stuart as a partner in the industrial practice for a few years and would be happy to help fellow members with career guidance. Piyush received his MBA from the IIM Ahmedabad in 1996. He is also a mechanical engineer from Delhi College of Engineering. He is married to Rinku Doshi, who is a computer engineer from Indore and has 2 children, Jay, 18, and Tia, 14. Piyush firmly believes in the core pillars of Jainism, Ahimsa, Aparigraha, and Arikantva, and feels these have helped him enrich his life greatly. Over to Piyush. Thank you, Naresh. You can hear me, right? Sure. सभी को फिर से जय जिनेंद्र. It's always a pleasure and a privilege to be speaking in this session and participating in this session. ऐसा सभी लोग जैसे जानते हैं कि हमारा फॉर्मेट एक टिपिकल लेक्चर वाला नहीं है. That's our differentiating factor. तो क्योंकि मुझे आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी तो मैंने जो कुछ अपने क्षमता से अध्ययन कर सकता था उतना पढ़ के कुछ पॉइंट्स को इकट्ठा किया है. इन जैनिज्म के 3 जो महत्वपूर्ण स्तंभ है, द 3 बेसिक पिलर्स ऑफ जैनिज्म, अहिंसा, परिग्रह और अनेकांतवाद, इसके बारे में जो मैं अपनी समझ से कुछ पॉइंट्स पढ़कर सुनकर इकट्ठे कर सका वो मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा. एंड द आइडिया इज कि आप इसके बाद इसके बारे में खुद विचार करें और इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से जोड़ते हुए अपने प्रश्न उठाएं और हम आपस में चर्चा करें, जिससे कि हमारे कुछ डाउट्स क्लियर हों और हम इनको अच्छी तरह से समझ सकें और उसके बाद अपने जीवन में उतार सकें. तो टू बिगिन विथ आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन क्योंकि इससे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड हो जाएगा, which will help. So I'll start with, तो हम स्टार्ट करते हैं अहिंसा से. तो जैनिज्म में जैसा कि हम सभी जानते हैं अहिंसा हमारे जैन धर्म का जो लोगो होता है उसके नीचे अक्सर लिखा जाता है अहिंसा परमो धर्म, राइट. तो ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है. तो हम इसे थोड़ा समझें कि इसमें क्या लेयर्स हैं. कुछ बहुत बेसिक चीजें वो जो हम सभी जानते हैं, पर कुछ लेयर्स हैं जिनके बारे में शायद हमने कभी विचार ना किया हो. तो लेवल्स ऑफ अहिंसा. दुनिया में अगर हम अहिंसा को देखें तो हम कई स्तर पे, कई लेवल पे देख सकते हैं. मैं इसको एक तरह से जैसे बच्चा ग्रेजुएशन की तरफ जाता है उस तरह से एक लेवल पे देखता हूँ. तो अगर हम प्राइमरी स्कूल वाली अहिंसा देखें, ये तो हम हर किसी, शायद दुनिया के कोई भी धर्म नहीं है जिसमें ये नहीं मिलेगी अहिंसा, राइट. डोंट किल फेलो ह्यूमन बींग्स. जो हमारे दूसरे इंसान हैं
हम उनको उनके खिलाफ उन्हें मारे नहीं, काटे नहीं। ये अहिंसा तो खैर हमें सभी जगह मिल जाएगी, तो इसके बारे में चर्चा करने की कोई बात नहीं। अगर हम सेकेंडरी स्कूल की तरफ जाएं तो नेक्स्ट लेवल है कि डोंट अब्यूज और हर्ट फीलिंग ऑफ फेलो ह्यूमंस। तो जो हमारे दूसरे लोग हैं, हम उनका दिल भी ना दुखाएं। आई थिंक हम विचार करें तो चाहे हम क्रिश्चियनिटी पढ़ें या इस्लाम पढ़ें, सभी में ये बात कही गई है कि हमें अपने जो भी दूसरे मनुष्य हैं उनको भाई बहनों की तरह ट्रीट करना चाहिए और उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये भी एक अहिंसा का लेवल है जो कि गांधी जी ने भी काफी उसको अपनाया था और लोगों में प्रचारित किया था। तो ये भी हम सभी मानते हैं। अब इसके बाद अगर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएं, दिस इज द लाइक हाई स्कूल लेवल, आई थिंक यहाँ पर आई वुड से एंड आई थिंक आई कैन प्रेटी कॉन्फिडेंटली से कि यहाँ पर जैनिज्म इज द ओनली वन जो थर्ड लेवल ऑफ अहिंसा है। और जो भी अभी मैं सिर्फ हाई स्कूल बनता हूँ कि हम सिर्फ फेलो ह्यूमन बींग्स नहीं, वी डोंट हर्ट और अब्यूज एनी लिविंग बींग। कोई भी जीवंत जीव को हम कोई हानि, नुकसान, दुख ना पहुंचाएं। दैट्स द जीव दया part. And this is the founding reason, which is why Jainism is the only religion जिसमें कि वेजिटेरियनिज्म पे इतना जोर दिया गया है, क्योंकि आप किसी और जीव को मारे काटे बिना नॉनवेज नहीं खा सकते। इसलिए दिस इज अ की थिंग, अ यूनिक थिंग ऑफ जैनिज्म, वेयर वी गोट टू द थर्ड लेवल ऑफ अहिंसा। और ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं, तो इसमें हमें और कोई बहुत ज्यादा वो चर्चा करने की जरूरत नहीं है। पर इसके बाद एक और लेवल है अहिंसा का, जो कि फिर जैनिज्म में ही पाया जाता है कि डोंट बेयर एनी इल फीलिंग और इवन अ थॉट ऑफ हर्टिंग एनी लिविंग बीइंग, कि हम किसी और जीव के प्रति अपने दिल में भी, अपने दिमाग में भी कोई ख्याल ना लाएं कि उसे बुरा करने का। क्योंकि मारने का तो ऐसा है कि भाई अगर मुझसे तगड़ा आदमी मिल गया तो मैं सोचूंगा यार मैं इसको मारना तो चाहता हूँ, लेकिन मारूंगा तो मैं ही ज्यादा पिट जाऊंगा। सो हो सकता है कि हम उसे ना मारें, लेकिन अगर दिमाग में ये एक बार विचार आ गया कि मुझे इसे मारना है, तो वो भी उतनी ही हिंसा है जितनी कि एक्चुअली मारने में। इनफैक्ट कहीं कहीं लीगल सिस्टम में हम देखें तो इसी तरह से हिंसा को माना जाता है, राइट? कि व्हेन यू से देयर इज मर्डर इज अ क्राइम, राइट? बट अटेम्प्ट टू मर्डर इज ऑल्सो अ वेरी बिग क्राइम। यूएस में उसे मैनस्लॉटर कहते हैं। सॉरी, मैनस्लॉटर इज अनइंटेंडेड मर्डर। तो अगर अनइंटेंडेड अगर कोई मर जाता है, मैनस्लॉटर, दैट इज एक्चुअली अ स्मॉलर क्राइम देन अटेम्प्ट टू मर्डर। तो अटेम्प्ट टू मर्डर एक तरह से यही है कि आपके दिल में मारना चाहते थे लेकिन सामने वाला बच गया। तो जो अल्टीमेट लेवल ऑफ अहिंसा है वो ये है कि हम किसी भी जीव के प्रति कोई दिमाग में भी ये है कि उसको कोई हानि पहुंचाने का भाव नहीं आए। तो ये सब तो ठीक है, आई थिंक हमारे इस ग्रुप में ये लोग जो सब जानते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, और ये सारी बातों को आई डोंट थिंक यहाँ पर एनीबडी वुड डिसएग्री, राइट? तो सवाल ये उठता है कि ये अहिंसा लेकिन हम कैसे पैदा कर सकते हैं, राइट? और अहिंसा का सोर्स क्या है? तो नॉर्मली दिमाग में आएगा कि अहिंसा का सोर्स द्वेष है। भाई हमारे को किसी से कुछ दुश्मनी है, कुछ बैर है, तो उससे हिंसा प्रोड्यूस होती है। तो हिंसा का सोर्स बैर है। लेकिन यहाँ पर अगर हम अपने जैनिज्म में जाएं, और दिस इज अगेन अ यूनिक थिंग जो कि हमें अपने धर्म से मिली है, कि एक्चुअली अगर हमें अहिंसा का रूट कॉज हिंसा का रूट कॉज हटाना है और अल्टीमेट अहिंसा को प्राप्त करना है, तो उसका रूट कॉज बैर नहीं है, राग है। और ये हमें जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है हमारा ग्रंथ, उसमें इस तरह से हिंसा के जो कोर है उसे समझाया गया है। अप्रादुर्भाव खलु रागादिनाम भवेत्य हिंसेति तेषामेवो तपत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। यानी निश्चय से रागादि भावों का प्रकट न होना यही अहिंसा है, और उन रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, ऐसा जैन सिद्धांत का सार है। Now, this is a level of हिंसा I think we should spend some time understanding कि ये तो हमने कभी हिंसा के बारे में नहीं सोचा कि राग तो हम एसोसिएट करते हैं प्यार से। अब अगर हम कोई मूवी देखने जा रहे हैं, हम उसको वायलेंट मूवी बोलते हैं, तो उसमें रोमांटिक गाने होंगे, ये थोड़ी एक्सपेक्ट करते हैं। तो ये जैनिज्म में कैसे कहा है कि राग ही हिंसा है? तो ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अब हम देखें कि राग किस तरह से हिंसा है। तो पहले तो हम लेते हैं कि जो दुनिया में बड़े बड़े झगड़े हुए, युद्ध हुए हैं, वो किन कारणों से होते हैं?
तो नॉर्मली हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि सारे जो झगड़े होते हैं, जो राजा महाराजा ने युद्ध किए हैं, वो 3 चीजों से किए हैं, जर, जोरू और जमीन। अब जर यानी कि रुपया पैसा, धन दौलत, जोरू यानी कि पत्नी रानियां, और जमीन उनके राज्य लैंड उनके लिए ये तीनों ही कारण आप देखे जाए तो उन्हें उनसे राग होता था और उस वजह से वो उसका युद्ध करते थे। राम को सीता से राग था इसलिए वो लड़ने गया, पर रावण को भी सीता से राग था, इसीलिए वो सीता को उठा के लाया और उसके साथ उसे इतने समय तक उसे मनाने का प्रयत्न करता रहा कि तुम मेरी पटरानी बन जाओ। और यही है कि महाभारत में सिर्फ 5 गांव, पांडवों ने सब कुछ छोड़ने का सारा राग छोड़ने को तैयार हो गए, लेकिन 5 गांवों का तो राग उन्हें फिर भी रह गया था। चाहते तो वो शायद हम लोगों की तरह 1 2 3 बेडरूम में रह सकते थे, पर नहीं, उन्हें 5 गांव चाहिए थे, उसका राग था और उसकी वजह से फिर इतनी बड़ी लड़ाई हो गई। तो इन चीजों के राग की वजह से ही फिर अल्टीमेटली हिंसा निकलती है। और फिर मैंने इसे सोचा कि क्या कोई ऐसी चीज है हिंसा जिसकी की जड़ में हमें राग ना मिले? क्या हम ऐसा कोई एग्जाम्पल ढूंढ सकते हैं? और मैं आप लोगों से भी सोचने को कहूंगा यहाँ पर कि आप लोग सोचें, और अगर आपको ऐसी कोई चीज मिलती है जिसमें कि आपको जड़ में राग नजर नहीं आता है तो आप चैट में डालें, या इस सेशन के एंड में अपन क्वेश्चन आंसर में डिस्कस कर सकते हैं। क्योंकि मुझे जहां तक दिखाई दे रहा है, हर हिंसा की जड़ में राग ही नजर आता है। जैसे कि हम कहीं जा रहे हैं गाड़ी में और हमें गुस्सा आ जाता है सामने वाले से कि क्योंकि कार से टक्कर हो गई, किसी ने कार हमारी कार को खरोच लगा दी। गुस्सा क्यों आता है? क्योंकि हमें अपनी कार से राग है। भाई दूसरे की किसी की कारों से कईयों को टक्कर लगती है, उससे तो हमें गुस्सा नहीं आता। तो जहां राग नहीं होता है वहां गुस्सा नहीं आता है। किसी ने हमें गाली दे दी, उससे गुस्सा आ जाता है, उससे हिंसा होती है। तो इसमें राग किससे? तो इसमें अपने अपने अहम, खुद से जो राग है, अपने नाम से जो राग है, वो उस हिंसा का कारण बनता है। इवन जो हमने अभी खाने पीने की बात की, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उन्हें भी उस मुर्गे से, बकरे से कोई दुश्मनी नहीं होती, उन्हें भी राग ही होता है। तो जो फूड भी है वो भी राग ही है जिसकी वजह से वो खाते हैं। अगर वो घृणा होती, दुश्मनी होती, तो वो एक्चुअली तो खाते नहीं उसको। यहां तक कि मैं कहूंगा कि जो एक सैनिक जाकर युद्ध में लड़ाई कर रहा है, वो भी तो इसीलिए कर रहा है कि उसे अपने देश से राग है। या तो वो अपने देश के लिए कर रहा है या उसे अपने परिवार से राग है, तो वो पैसा कमाने के लिए कर रहा है। तो एक इवन जो सैनिक, जिसे कि हम काफी विशेष पेडेस्टल पे रखते हैं, वो भी एक राग की वजह से ही लड़ाई कर रहा है। तो अल्टीमेटली ये निकलता है कि अगर हमें अपने जीवन में सच्ची अहिंसा प्रकट करनी है तो उसके जड़ को खत्म करना हो, और सारी हिंसा का जड़ राग में है। और इसलिए जो हमारा जैन धर्म है उसको वीत द्वेष धर्म नहीं कहा है, उसको वीतराग धर्म कहा है। और इस वजह से उसको वीतराग धर्म कहा है क्योंकि जो हमारा धर्म अहिंसा वाला है, उसका असली तरीका राग को खत्म करना है। तो मैं तो जहां तक सोच सका था कि सारे राग ही सारी हिंसा की जड़ है, बट अगर आपको और सोचने से कोई ऐसे केस मिल रहे हैं जिसमें कि हिंसा की जड़ राग नहीं है, तो जरूर यहाँ पर शेयर करें। अब सवाल ये उठता है कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जीवन चलाने के लिए कई चीजों से राग तो होता ही है, और इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में हिंसा रहेगी। तो इसलिए श्रावकों के लिए थोड़ी कैटेगरी बना के थोड़ा सिंपल किया गया है कि 4 तरह की हिंसा बताई गई है। एक तो संकल्पी हिंसा है, जैसे जानबूझकर किसी भी छोटे बड़े जीव को मारना, ये संकल्पी हिंसा है। तो ये जो हमने शुरू में बात की थी, इसमें संकल्पी हिंसा तो ऑब्वियसली हमें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप का कारण। उसके बाद आता है आरंभी हिंसा, खाना पकाना, पानी भरना, कपड़े धोना, इवन अपनी नौकरी करना। नौकरी करने के लिए अगर हम अपनी कार में जा रहे हैं, उससे हिंसा होती है। तो ये सारी हमारा जो नॉर्मल जीवन चलाने के लिए जो काम करते हैं, उससे जो हिंसा होती है, उसे आरंभी हिंसा कहते हैं। तीसरी होती है उद्योगी हिंसा, व्यापार खेती आदि जो होता है उसमें उद्योगी हिंसा होती है। और चौथा होता है विरोधी हिंसा, अपने परिवार, समाज, देश तथा सत्य की रक्षा हेतु विरोधियों से लड़ना विरोधी हिंसा है। तो जब हमारे लिए यह दुविधा पैदा होती है कि भाई हम एक श्रावक हैं, हमारा जीवन चला रहे हैं, तो हम सारी हिंसा को नहीं हटा सकते, तो फिर ये बताया गया है कि जो संकल्पी हिंसा है उसे तो हमें जरूर छोड़ना है। जो आरंभी, उद्योगी और विरोधी हिंसा है, वो एक श्रावक के जीवन में रह सकती है जब तक कि आप मुनि नहीं बन जाते, पूरी तरह से संसार से छोड़ नहीं देते,
तब तक वो रह सकती है, लेकिन उसमें भी जहां तक हो सके हम अपना राग किस तरह से कम करें और इस तरह से उस हिंसा को कितना कम कर सकें, वो हमें करना चाहिए। जैसे विरोधी हिंसा कैसे कर सकते हैं, अब कोई ये कहेगा कि भाई मैं विरोधी हिंसा कैसे कम कर सकता हूँ, मुझे तो अपने देश को बचाना है। पर अगर आपका देश के प्रति बहुत ज्यादा तीव्र राग है, तो किसी ने आपके देश को गाली दी, आप उसके खिलाफ मारने खड़े हो गए, ये अननेसेसरी वायलेंस हो गया एक तरह से। भाई आपको अपने देश को बचाना है, लेकिन नहीं, वो नेशनलिज्म के नाम पर जितनी हिंसा होती है, और मैं तो कहता हूँ इवन धर्म के नाम पर, किसी ने दुनिया की बड़ी बड़ी झगड़े धर्म के नाम पर हुए हैं, और ये धर्म के राग की वजह से ही हुए ना, किसी को अपने धर्म से द्वेष तो नहीं था, पर इसने मेरे धर्म को ऐसा क्यों बोल दिया, उसके नाम पर कितना हिंसा हो जाती है। तो फिर वही बात आती है कि हमें इसकी रक्षा करनी है, जहां पर अन्याय हो रहा है उसे लड़ना है, लेकिन अगर हम अपने उसने राग को मंद रखेंगे तो हिंसा हमारी कम से कम हो पाएगी। तो मैं इस हिंसा और उसके कारण का ये पार्ट यहीं पे खत्म करता हूँ, और अब हम अगले जो आज के 3 टॉपिक है, अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद, तो अब हम अपरिग्रह की तरफ जाएंगे। तो अपरिग्रह, जिसका की मतलब है नॉन पॉसेसिवनेस, नॉन ग्रास्पिंग, लेट गो ऑफ व्हाट इज नॉट नीडेड, तो इसके भी लेवल्स हैं, लेवल्स ऑफ अपरिग्रह। तो इसमें अगर हम प्राइमरी स्कूल लेवल की समझने जाएं तो क्या होगा, डोनेट अ पोर्शन ऑफ योर वेल्थ। तो कोई भी, अगेन किसी भी आप धर्म में जाएं, किसी भी संस्कार संस्कृति में जाएं, सभी जगह दान पर काफी महत्व रहता है। सभी को कहीं पर ये कहा गया है कि यू शुड डोनेट क्वार्टर ऑफ योर वेल्थ और एटलीस्ट 10% ऑफ योर वेल्थ। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी वेल्थ को आपको शेयर करना चाहिए, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात है, और ये सभी धर्मों में मिलेगी। तो इसमें अगेन कोई डिबेट, कोई डिस्कशन नहीं है। पर अब हम इसके हाई स्कूल लेवल पे जाएं तो ये कहेंगे कि स्टॉप अक्यूमुलेटिंग बियॉन्ड योर नीड्स। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि ऐसी बात अगेन जैनिज्म के बाहर बहुत ही कम जगह मिलती है कि भाई कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि आप पैसा मत कमाओ, एक जरूरत से ज्यादा नहीं कमाओ। तो सिर्फ जैनिज्म में ये बात कही गई है कि अगर आप गृहस्थ हो, आपकी कुछ जरूरतें हैं, आप जरूरतों की सीमा बांधो, और उसके बाद जब आपकी वो सीमाएं हो जाए तो आप रुक जाओ। तो स्टॉप अक्यूमुलेटिंग बियॉन्ड योर नीड्स, दैट्स द हाई स्कूल। द ग्रेजुएशन इन अपरिग्रह इज गिव अप ऑल मटेरियल पोजेशंस, विच इज वेयर हमारे मुनिराज होते हैं, जो कि अपना सभी को छोड़कर जो अल्टीमेट अपरिग्रह को प्राप्त करते हैं। और उसके बाद अगर हम इसमें भी पीएचडी करना चाहते हैं तो दिस इज द अल्टीमेट लेवल, क्योंकि वी हैव टू एलिमिनेट अगेन द रूट कॉज ऑफ पोजेशन, which is give up all attachments, physical and emotional. Why is that? क्योंकि एक अगर भिखारी भी है, उसके पास अगर कुछ भी नहीं है, तो क्या वह अपरिग्रह का धारी है? नहीं, क्योंकि उसके दिल में इच्छा तो पूरी है ना। आज हमारे पास किस्मत से हमारे सब कुछ दिवालिया निकल जाए, हमारे पास एक पैसा ना बचे, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारे अपरिग्रह हो गया। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारी किस्मत से कहीं बहुत जायदाद मिल जाए, बड़ी सी लॉटरी निकल जाए, और हमारे पास करोड़ों रुपए हो जाए, लेकिन हमें दिल में ये लगे कि ये तो भाई मेरे पुण्य का उदय है, जो मेरे पास संयोग हो गया है, लेकिन इसमें मेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, तो पूरा संसार का धन होते हुए भी अपरिग्रह हो सकता है। तो अपरिग्रह का सीधा सा मतलब ही यही है कि जो परिग्रह का क्या मतलब हुआ, पर जो दूसरा है ग्रह, उसको ग्रहण करना। तो दूसरा क्या है, अगर हम विचार करें तो हमारी आत्मा के अलावा सभी कुछ दूसरा है। तो इसलिए अपरिग्रह का सीधा सा मतलब है कि हमारी आत्मा के अलावा अगर हम बाहर की किसी भी चीजों को ग्रहण करें, यानी कि अपना माने, तो वो सभी कुछ परिग्रह है, और उस सभी को छोड़ना यही अपरिग्रह है। तो ये 4 लेवल परिग्रह के, जिसमें कि हम इसलिए चाहते हैं कि हम अल्टीमेट लेवल पर जाएं, पर हमें कोशिश करना चाहिए कि हम धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में हम और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में विचार करेंगे। पर अगर हम इसको और भेद जाएं, कि आपने सुना होगा परिग्रह के 24 भेद होते हैं, तो वो क्या होते हैं? तो 24 भेद परिग्रह के 10 तरह के तो बाह्य परिग्रह होते हैं। इसमें क्योंकि ये पुराने उस समय में लिखी गई थी जब एक अलग सिस्टम था, 10 तरह के जो बाह्य परिग्रह, इसमें क्षेत्र, खेत, जमीन, घर, चांदी, सोना, पशु, चावल, नौकरानी, चाकर, वस्त्र, बर्तन आते हैं। अब मैं कहूंगा कि अगर आज की तारीख में अगर बाह्य परिग्रह के भेद लिखे जाएं तो शायद हम इसकी लिस्ट डिफरेंट हो जाएगी, उसमें हम आईफोन, आईपैड, लैपटॉप, कार वगैरह लिख देंगे। तो एग्जैक्ट नंबर्स मटेरियल नहीं है, बट क्या मटेरियल है
कि जो बाह्य परिग्रह है, इसमें जो चीजें जिसे दुनिया वेल्थ कहती है, दुनिया जिसे धन धान्य संपत्ति कहती है, वो सारी चीजें बाह्य परिग्रह में आती है, और इसमें ये जो 10 भेद कहेंगे। पर हमारे यहाँ जैनिज्म में चीजें बहुत डिटेल और अंदर तक जाती है, क्योंकि हम उसको जड़ से खत्म करते हैं, तो हम बाह्य परिग्रह पे नहीं रुकते। इससे बड़े हमारे जो दुश्मन है वो अंतरंग परिग्रह है, और अंतरंग परिग्रह में 14 भेद कहेंगे, जो 14 और 10 मिला के 24 परिग्रह होते हैं। इसमें मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद, ये 14 अंतरंग परिग्रह आते। तो ये मैंने थोड़ा इसमें समझने की कोशिश की कि ये इन चीजों को कैसे अंतरंग परिग्रह कहते हैं। तो इसे हमें इस तरह से समझना चाहिए कि जो हमारा आत्मा का स्वरूप है, जो आत्मा का स्वरूप है वो तो सिर्फ जानना देखना है, सिर्फ ज्ञान दर्शन। तो ये जो सारी चीजें हैं, मिथ्यात्व, गलत मान्यता, क्रोध करना, मान करना, माया, लोभ करना, ये हमारे आत्मा का स्वरूप नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये आत्मा का विभाव है। और ये आत्मा के जो विभाव युक्त जो ये सारे भाव हैं, इसको हम, ये भी पर ही हैं, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव नहीं है इसलिए ये पर है। और इनको जब हम ग्रहण कर लेते हैं, इसे हम अपना मान लेते हैं, तो ये भी एक परिग्रह हो जाता है। और इसलिए इन्हें छोड़ना भी, परिग्रह को छोड़ने में हमें इन आत्मा के विभाव रूप चीजों को छोड़ना पड़ेगा। बट अगर हम जिस तरह से हमने देखा कि हिंसा को खत्म करने के लिए, उसकी जड़ में जाने के लिए हमें राग को छोड़ना पड़ेगा, परिग्रह को खत्म करने के लिए हमें उसकी जड़ में जाने के लिए सारी चीजों में अपनापन खत्म करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा कि हम सिर्फ और सिर्फ एक भगवान आत्मा है, जिसका काम सिर्फ जानना देखना है, और जो बाकी सारी चीजें हैं वो संयोग से हमारे साथ आसपास जुड़ती जाती है, पर वो हमारी होती नहीं है। तो we start confusing coincidences because we get attached to thing, क्योंकि हमने कपड़ा पहन लिया तो हम उसके साथ जुड़ गए हैं, पर है कपड़े की तरह हमारे शरीर हमारे साथ जुड़ गया है, पर वो हमारा कभी होता नहीं है। और जब हम ये समझ पाएंगे कि ये सारी चीजें अन्य हैं, तो फिर हमें उसको छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बेसिकली द रूट कॉजेज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये हमारा नहीं है। दुनिया भर की इतनी सारी चीजें जिन्हें हम जानते हैं आज की तारीख में कि हमारी नहीं है, वो पड़ोसी की कार है, वो जब हम जानते हैं कि हमारी नहीं है, तो फिर हमें उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसको छोड़ने में। उसकी चोरी हो जाए, वो टूट जाए, वो गायब हो जाए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर हम यही चीज, जो अपनी चीजों को हम अपना माने बैठे हैं, अगर हम इसी भाव के साथ उनको देखने लगे, इस अलग दृष्टिकोण से उन्हें देखने लगे कि हाँ ये चीजें भी मेरी नहीं है, तो अपने आप ही वो छूट जाएगी। वो फिर वो मेरे बाजू में बैठी रहे या नहीं बैठी रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं उबर करके टैक्सी में जाता हूँ, एयरपोर्ट जाता हूँ, टैक्सी निकल जाती है, बीच में उस टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसका शीशा टूट गया, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं चाहे उस टैक्सी में बैठा हुआ हूँ इस वक्त, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये मेरी नहीं है। और वहीं मेरी एक जो कार घर में नीचे खड़ी हुई है, उसके बारे में अगर कोई मुझे बताए कि उसमें एक खरोंच आ गई है, तो फिर मेरा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो सारी प्रैक्टिस इसी बात की है कि हम किस तरह से माने कि ये चीजें हमारे साथ नहीं है। इवन जो हमारे भाव हैं, जो ये विकारी भाव है, वो भी मेरे नहीं है। तो हम इस तरह से जब अपनी जड़ से इस चीज को खत्म करेंगे, तो हमारा परिग्रह अपने आप कम हो जाएगा। तो ये बात हुई अपरिग्रह की। अब जो है बाद में डिस्कशन होगा, हम सुनना चाहेंगे विभा जी से और औरों से भी कि उनका इसके बारे में और क्या कहना है कि हाउ वी कैन रिड्यूस इट। अब हम अपने आज के तीसरे टॉपिक पे आते हैं, जो अनेकांतवाद है। अनेकांतवाद बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बेसिकली व्हाट इट सेज इज कि एवरीथिंग इन लाइफ इज मल्टी डिमेंशनल। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुण धर्मों से युक्त है। अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है। तो किस तरह से? जो वस्तु तत् है वही अतत् है, जो एक है वही अनेक है, जो सत है वही असत है, जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व का उत्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। जैसे एक है अनेक है किस तरह से कि अगर हम द्रव्य को देखें, द्रव्य जीव द्रव्य एक तरह से कहें तो एक है, पर दुनिया में वो अनंत है। तो एक तरह से वो एक भी है, अनंत भी है। इसी तरह से आत्मा जो है वो नित्य है, अनादि अनंत है,
लेकिन वो अनित्य भी है क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्याय में वो कुछ समय के लिए रहती है। तो पर्याय दृष्टि से देखे तो अनित्य है, द्रव्य दृष्टि से देखे तो नित्य है। तो इस तरह से कहा जाता है कि एक ही वस्तु में अनेक तरह के गुण होते हैं, हम किस दृष्टि से, और धर्म होते हैं वो किस दृष्टि से देख रहे हैं, इस तरह की बात होती है। एक अगर पानी को देखा जाए तो पानी ठंडा होता है, गर्म होता है, क्या कैसे कर सकते हैं। अगर हम उसके बर्फ के रूप में देख रहे हैं तो ठंडा भी होता है, अगर उसको भाप के रूप में देख रहे हैं तो गर्म भी होता है। तो किसी भी वस्तु में अनेक गुण धर्म है, और यह वस्तु का स्वरूप, अनेकांत रूपी स्वरूप को समझना, यह अनेकांतवाद है। और अनेकांतवाद की चर्चा हमेशा स्वादवाद के साथ होती है, क्योंकि कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि फिर ये अनेकांत और स्वादवाद का क्या मतलब है। तो साधवाद इज बेसिकली अनेकांतवाद जो वस्तु है उसका कहने का तरीका है। तो बेसिकली यही है कि किसी भी एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का कथन करना मुश्किल होता है। तो कभी भी एक धर्म को मुख्य करके कथन कहते हैं और कभी दूसरे को। जैसे लेकिन मेन बात यह कि जब भी हम उसको मुख्य धर्म कह के भी कथन कह रहे हैं तो जो गौण से रूप से स्वीकार कर रहे हैं उसका निषेध नहीं होना चाहिए। तो इसे कहने की पद्धति को स्यादवाद कहते हैं। इट्स लाइक द वे ऑफ स्पीकिंग। और ये तो जैनिज्म ने सालों से, हजारों साल पहले जैनिज्म में ये स्यादवाद और अनेकांतवाद का किया था। बट बेसिकली इफ यू लुक एट इट टुडे, स्यादवाद इज इन अ वे द सेम एज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन ने क्या बोला था कि हम कहते हैं कि आइंस्टाइन ने बोला कि भाई ये चीज रुकी हुई है या चल रही है। He said it doesn't matter, it's all relative. अगर अभी आप बैठे हुए हैं या आप चल रहे हैं, अगर आप पृथ्वी के रिलेशन में देखेंगे तो आप स्टेशनरी हैं, आप बैठे हुए हैं। अगर आप चंद्रमा के रिलेशन में देखेंगे तो आप कई हजार किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। अगर आप सूर्य के रिलेशन में देखेंगे तो आप कई लाख किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं। तो everything in life is relative, and this principle of relativity in terms of physics changed the way we look at the world. But Jainism में ये बहुत ही पहले ही ये relativity का principle बताया गया था स्वादवाद के नाम से, कि जो हम किसी भी वस्तु को देखते हैं तो उसमें हम उसको किस एंगल से देख रहे हैं वो कहना जरूरी है। और अगर हम वो उस एंगल को नहीं समझें कि किस एंगल से देखा जा रहा है तो सारा कंफ्यूजन और झगड़ा भी होता है। जैसे कि अगर हम जैनिज्म में ही देखें, कई बार बात की जाती है कि जो पुण्य है वो हे है। ये बात कही जाती है कि मतलब पूजा करना, पाठ करना, ये हे है। तो ये किस प्रयोजन से कहा जा रहा है, किस नए से कहा जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा कि नहीं भाई पुण्य किस तरह से है, पुण्य करना तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको इस तरह से समझना चाहिए कि मान लीजिए आप बॉम्बे से दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते में जयपुर पड़ता है। तो अगर आप बॉम्बे से निकले हैं, रास्ते में जयपुर आएगा, उसको आप मान लीजिए पुण्य समझ लीजिए। तो आप बॉम्बे से निकले हैं, आपके लिए पुण्य बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो पुण्य आपके लिए उपादेय है। लेकिन एक बार जयपुर पार हो गया तो फिर आप पुण्य की तरफ क्यों देखेंगे? आप तो शुद्ध की तरफ जा रहे हैं, तो शुभ को आप पीछे छोड़ते हुए शुद्ध की तरफ जा सकते हैं। तो आपको फिर आपके लिए वो है। अगर आपको नहीं तो आपको उपादेय लगेगा, आप मुड़ के वापस जयपुर की तरफ जाएंगे, आप दिल्ली पहुंचेंगे ही नहीं। तो इट्स ऑल रिलेटिव कि आप उस सिचुएशन, आप उस जयपुर के रिलेशन में आप उससे पीछे हैं या आप उससे आगे हैं, विल डिसाइड कि वो है या उपादेय है आपके लिए। तो इसी तरह से जो हमारा आत्मा की बात होती है कि हमारा आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है। अगर हम द्रव्य दृष्टि से देखेंगे तो बिल्कुल शुद्ध है, कभी उसमें कोई राग द्वेष विकारी भाव कभी भी उसमें चिपक नहीं सकते। लेकिन हम उसको पर्याय दृष्टि से देखते हैं तो बिल्कुल अशुद्ध भी होता है। तो किस दृष्टि से देख रहे हैं, किस नए से देख रहे हैं, ये कहने का तरीका, ये साधवाद है। तो बेसिकली इसी चीज को अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो हमारे सारे झगड़ों की जड़ यही होती है कि भाई बॉस की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमने अच्छा काम किया है या नहीं किया। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमने बहुत अच्छा काम किया। हम कभी ये कोशिश करें कि बॉस का पॉइंट ऑफ व्यू क्यों था, कि उसको क्यों लग रहा है कि भाई मैंने काम अच्छा नहीं किया, तो हम शायद अपने काम को बेटर कर पाएंगे। और अगर हम उसका पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे तो हमें लगेगा ये बॉस तो सिर्फ मेरा बुरा चाहता है, और हम सिर्फ उसमें अपना क्रोध पैदा होगा और फिर हम और भी खराब काम करेंगे। मैं तो कहता हूँ बॉस तक क्यों जाए, घरों के झगड़ों को ही देख ले, हस्बैंड वाइफ का। एक्चुअली स्वादवाद इज द सेकंड बेस्ट थिंग टू एलिमिनेट डोमेस्टिक क्वारल्स। फर्स्ट बेस्ट थिंग है कि जो हस्बैंड या वाइफ बोल रहा है उसकी बात मान लो। लेकिन इफ यू कैंट डू दैट, एटलीस्ट
ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो हस्बैंड अगर ऐसा बोल रहा है या ऐसा सोच रहा है तो वो किस वजह से सोच रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। जो कहते हैं ना कि ट्राई पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर्स, मेरे ख्याल से सैड वर्ड इंग्लिश में कहा जाए तो बस बेसिकली यही है कि ट्राई पुटिंग योरसेल्फ इन अदर पर्सन शू व्हेन वी टॉक अबाउट इट इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, देन यू विल बी एबल टू सी द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे और सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये है सैदवाद की बात। तो आई जस्ट ट्राई टू समराइज बेसिकली जो 3 हमारे मेन क्वेश्चन आते हैं और जिसी पे हमें ज्यादा डिस्कशन करना चाहिए, जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात आती है कि अहिंसा। तो हम अहिंसा कैसे प्रैक्टिस करेंगे? राग कम करके। राग कैसे करेंगे? हमें बेसिकली जो डिटैचमेंट है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि ये चीज मेरी नहीं है, मुझे इसमें अपना राग कम करना है, तो अपने आप हमारी उससे अहिंसा कम हो जाएगी। हमारा सारा गुस्सा इसी से आता है क्योंकि उस चीज को अपना मानते हैं और फिर हम उसे पाने के लिए छुट जाते हैं। अपरिग्रह, इसकी प्रैक्टिस होगी रिड्यूस पोजेशन। सो वी हैव टू सी कि क्योंकि हमारे यहाँ जो व्रत उपवास होते हैं जो बताए जाते हैं वो भी इसीलिए बताए जाते हैं कि हम अपने को अपनी वो चीजें कम करें, अपनी मर्यादाएं करें, और फिर हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअली थोड़े टाइम के बाद उस चीज की हमें वाकई जरूरत ही नहीं है। इसमें एक आई विल रेकमेंड दिस, मैंने ये एक जो पेपर पढ़ा था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पेपर है, 2016 में लिखा था बाय मेलिसा डायल। उन्होंने एक रिसर्च की थी and it basically in the end said that why winning the lottery won't make you happier, and they actually did this research. So उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसे लोग लिए जिन्हें लॉटरी लगी और कुछ ऐसे लोग लिए जिन्हें काफी मेजर लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, जैसे एक्सीडेंट हो गया, और फिर उन्होंने सर्वे करते थे वो लोग हर 1 महीने के बाद कि हाउ हैप्पी आर यू, रेट ऑन ए स्केल ऑफ 5 हाउ हैप्पी आर यू। तो फर्स्ट जो लॉटरी लगने के बाद और जिनका एक्सीडेंट हुआ, ऑब्वियसली इन द फर्स्ट 2-3 डेज, फर्स्ट मंथ और सो, जो पीपल हु गॉट लॉटरी वेयर मच हायर ऑन हैप्पीनेस एंड पीपल हु हैड एक्सीडेंट वेयर मच वर्स। पर 6 महीने के अंदर एक्चुअली जिनके साथ एक्सीडेंट हुआ था या लाइफ में कुछ बुरी घटना हुई थी, उनका लेवल ऑफ हैप्पीनेस वाज एक्चुअली सेम और हायर देन पीपल हु वन लॉटरी, एंड दैट्स व्हाट the conclusion was, which nobody expected. तो इसका अल्टीमेट क्या अर्थ निकला? बेसिकली what it was trying to say is कि जो भी हमारी पोजेशन है हमें उसकी आदत पड़ती जाती, तो और फिर जब उतनी चीज की आदत पड़ जाती है तो फिर हमें उससे ऊपर चाहिए रहता है, क्योंकि हमें उतनी हैप्पीनेस के लिए उससे एक्स्ट्रा चाहिए। बट जब हमारे पास कम होता है तब हमें उसकी भी आदत पड़ जाती है, और अगर हम जितने कम की आदत डाल लें तो हमारा परिग्रह वैसा कम हो जाएगा, एंड देन वी विल नीड लेस एंड लेस टू बिकम हैप्पी। तो ये सिर्फ जैनिज्म ही नहीं कह रहा है, ये एक्चुअली जो वेस्ट में स्टडी करके साइंटिफिकली उसका डेटा करके कलेक्ट करके प्रूव किया गया है कि हैप्पीनेस हैज इंक्रीजिंग पोजीशन डजंट इंक्रीज हैप्पीनेस। तो अगर सिर्फ उतना भी लिमिटेड गोल है तो एक्चुअली रिड्यूसिंग पोजीशन लॉन्ग टर्म में कैन इंक्रीज हैप्पीनेस मच मोर। एंड फाइनली Anikant and Sadhvai, we just talked about it. We should understand the other person's perspective. India should understand perspective of Pakistan. Pakistan should understand perspective of India and Kashmir. दोनों कंट्रीज ज्यादा मिलके साथ में रह सकती है. Husband should understand the perspective of wife. Employee should understand the perspective of boss, and vice versa. The world will be a much more peaceful place. So if we think about all of these together, हमारी जो आज की सोसाइटी में जो सारे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप देखें कि अगर लोग इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने लगे, if they give up strong positions, if they reduce possessions, if they start understanding each other, we will be a much more happier, sustainable society. And that's why I believe कि जो जैनिज्म के प्रिंसिपल हैं, हम दूसरे जन्म की बात छोड़ दें, हमारा जो यही जन्म है, यही संसार जो है, उसी को हम अगर हम ये फॉलो करने लगे, अगर दुनिया फॉलो करने लगे, तो it can become a much better world. I'll pause there. Thanking you all for listening patiently. I just wanted to put these points. अब किसी के भी इसके additional points हों, I'll stop sharing this. पीयूष जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही बढ़िया आपने बात समझा। जिस तरह से आपने समझा ना सिंपल तरीके से, मुझे आपका जो एक्सप्लेनेशन था प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, ग्रेजुएशन और पीएचडी, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अमेजिंग। इससे लगता है कि हमको अपना लेवल कितना बढ़ाना है आगे, उस हिसाब से हम रिलेट कर सकते हैं। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से रिलेट किया और बहुत ही बढ़िया। इसमें एक दो बात मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा। जैसे आपने बोला कि ये बात बिल्कुल सर्वविदित है अपन सबको कि अपनी जो हिंसा का कारण है वो राग ही है,
जैसे आपने समझाया वीतराग जो शब्द आता है, अपने भगवान है, वीतरागी हैं। तो जो मेरा मतलब अपन बात मानते हैं कि हमारे तीर्थंकर भगवानों ने हमको जो उपदेश दिया, जो उन्होंने जो भी सिद्धांत हमको बताए हैं, वो सब सिद्धांत हम उनके उसमें कहीं भी कोई कमी ढूंढ ही नहीं सकते। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बता पाएगा कि हिंसा का कारण द्वेष है, हिंसा का कारण राग ही है, मोह, मोह राग। और ये है, और द्वेष बाद में बोला जाता है, राग द्वेष, कोई भी द्वेष राग नहीं बोलेगा। तो मोह राग द्वेष, तो सब कारण राग से ही शुरुआत होती है और राग होती है, और सब बाई प्रोडक्ट है इस बात के। तो ये बात बिल्कुल सही है। और वीतरागता जो है वही हमें प्राप्त करना है, ये अल्टीमेट गोल है। तो वीतरागता प्राप्त करना है, जैसे आपने कहा वीत द्वेष तो प्राप्त नहीं करना है, वीतरागता ही प्राप्त करनी है। तो बात बिल्कुल सही है। और एक छोटा सा पॉइंट मैं ऐड करूंगा, जैसे अपना परिग्रह अपन कम कैसे करें। तो आपने जैसे डिफरेंट लेवल में जान करके और फिर अपना जो अल्टीमेट गोल है कि जो हमारे अंतरंग जो परिग्रह हैं वो हमें छोड़ लें। बाहर के परिग्रह छोड़ना तो शायद आसान हो जाता है, पर अंतरंग परिग्रह हमारे छूटते ही नहीं है, वो बहुत चलते ही रहते हैं। तो उसका अपना जैसे अपन सब स्वाध्याय करते हैं, सीखते हैं, अपन से जो विद्वान लोग हैं उनसे अपने को ज्ञान मिलता है। तो उसके आधार पे मैंने जो सीखा कि हम जो परिग्रह छोड़ने के लिए हमें बहुत बड़ा स्टेप लेने की, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जरूरत नहीं है, लेकिन मुश्किल होता है। तो हम छोटे छोटे कदम लेकर के हम इसको कम कर सकते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण है, जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हुआ आपकी बात सुन रहा हूँ, तो 1 घंटे के लिए मुझे अपनी सीट से हिलना नहीं है। तो उससे पहले मैंने मन में नियम ले लिया, मेरी पत्नी मुझसे करवाती है, खुद करती है, तो उसके कहने से मैं लेता हूँ। जैसे आपने स्वादवाद और वो वाले एग्जाम्पल दिए पति पत्नी के, कि इस 1 घंटे के लिए क्यों ना अपन 4 आहारों का त्याग कर दें। मैं उठ के जाने वाला ही नहीं हूँ, खाना ही नहीं है मुझे। तो फिर इतना अच्छा मेरे पास संयोग है या चांस बना हुआ है, तो 1 घंटे के लिए त्याग कर दिया। लेकिन मन से त्याग करना है, दिखाने के लिए नहीं या ऐसा नहीं, मन से करना है। तो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा सबसे अच्छा जो मुझे सीखने को मिला कि हम सोने जाते हैं, तो सोने से पहले हम 4 कषायों का, सारे परिग्रहों का, सबका त्याग करके सो। मतलब ये जस्ट मैं शेयर कर रहा हूँ सबके लिए। उसके कई सारे कारण है। पहला तो यही कि हमें परिग्रह खत्म करना है, अंतरंग और बहिरंग। तो उसमें अंतरंग परिग्रह सबसे महत्वपूर्ण है। तो सोते वक्त हम कुछ करने वाले ही नहीं है, तो उनका त्याग करके सो आप। अब उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि कभी ऐसा ना हो किसी के साथ, पर ऐसा हम सुनते हैं, कोई व्यक्ति सोते सोते चला जाता है या कोई दुर्घटना घट जाती है। तो अगर हमारे सारे त्याग किए हुए हैं और उस वक्त हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो लगभग समाधि मरण की हमारी अंतकाल होगा। इतना बड़ा उसमें काम हो जाता है। तो ये चीज मैं स्वाध्याय से ही ये सीखा। और ये करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप सोने तो जा रहे हो, सोते मन से आप भगवान का नाम लो और अपने सारे ये नियम लेकर के आप सो जाओ। तो इससे आपके अंतरंग परिग्रह और सारे राग द्वेष खत्म हो जाएंगे। तो हम छोटे छोटे स्टेप लेकर के, छोटे छोटे नियम लेकर के, और ये तो ऐसे नियम ले रहे हैं जिसमें कि हमें कुछ करना ही नहीं है। अब 1 घंटे जब मुझे खाना ही नहीं है, तो नियम लेने में तो कोई दुविधा आने वाली ही नहीं है। तो इस तरीके से जो है रिलेट कर सकते हैं। पर आपने जो समझाया ना तीनों टॉपिक्स, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सुन करके। और पीयूष जी तो आप हमेशा अच्छे से समझाते हैं, सब अच्छे से बताते हैं। थैंक यू जी। और इनफैक्ट नियम वाला तो हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कभी जैसे उपवास या वो करते हैं कासना भी, तो उस टाइम जब छोड़ा होता है खाना, तो वो हमारे लिए उस टाइम फिर उतनी याद नहीं आती। लेकिन अगर जब हमें नहीं छोड़ा होता तो हम पूरे दिन नहीं भी खाते हैं, लेकिन फिर वो बार बार दिमाग में वो विकल्प चलता रहता है। तो उस विकल्प को हटाने के लिए ये वही है ही नियम। हाँ। तो और धीरे धीरे ये सब हर चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर आप दिन रोज 5 किलोमीटर दौड़ेंगे, 7 किलोमीटर दौड़ेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 20 किलोमीटर दौड़ पाएंगे। लोग मैराथन भी दौड़ पाते हैं। तो जहां तक मेरा मानना है कि हमें अपरिग्रह का भी एक और राग त्याग करने का भी एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि भाई नहीं है ये ना नहीं करना। और इसीलिए हमारे जो व्रत वगैरह है उनका बहुत महत्व है, क्योंकि वो एक तरह से हमें प्रैक्टिस करवाते हैं चीजों को छोड़ने की। बिल्कुल, क्योंकि सामान्य जीवन, अपना जो ग्रस्त जीवन है, उसमें इतना आसान नहीं होता है इन सब चीजों को छोड़ना। अपन सिद्धांत समझ लेते हैं, अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं, पर आप देखेंगे तो सांसारिक जीवन के लिए, जीव के लिए जो कि ग्रस्त अवस्था में है, मुनियों की बात अलग है। मुनियों ने तो सब छोड़ ही दिया, तो उनके जीवन में तो वो बातें होती ही नहीं है जिससे कि उनके लिए कुछ ऐसी आकुलता हो। हमारा जीवन तो ऐसा है कि बहुत बंधन वाला है, तो हम तो इन चीजों में फंसे हुए ही हैं। तो हमारे लिए छोड़ना बहुत ही मैं नामुमकिन तो ना बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, लेकिन बहुत मुश्किल होता है, लगभग असंभव सा होता है। तो ये छोटे नियम है। जैसे आपने व्रत वाला उदाहरण लिया, तो बहुत अच्छा उदाहरण लिया। अगर हमारा नियम जिस दिन व्रत नहीं होता, हम दिन में
चाय भी पी लेते हैं, खाना भी खा लेते हैं 3-4 बार, इच्छा होती रहती है। लेकिन जिस दिन व्रत होता है ना, उस दिन वो विकल्प ही नहीं आता है, और सुबह उठते नेक्स्ट डे तो भूख भी नहीं लगती है। आप इस बात को नोट करना, जिस दिन व्रत नहीं होता उस दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग आपको भूख भी ज्यादा लगेगी, लेकिन व्रत के अगले दिन आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो बात बिल्कुल सही है। चलो नीरज जी, स्वाति जी के पास चलते हैं। हाँ, एक जस्ट पॉइंट आई वांटेड टू से, क्योंकि व्रत में ये तो हमने खाने की बात की, बट एक जैसे लोग व्रत ले लेते हैं कि कुछ लोग, जैसे मेरे कॉलीग था, उसका था कि भाई मैं ना ये 3 ही शर्ट रखूंगा, और देन ही विल कीप ओनली 3 व्हाइट शर्ट्स। तो बोले उसको सुबह उठ के सोचना ही नहीं है, यू नो, या तो व्हाइट शर्ट पहननी है, या व्हाइट शर्ट पहननी है, या व्हाइट शर्ट पहननी है, और नाक उसको खरीदने में सोचते हैं। सही बात। तो अपनी आकुलता इतनी कम हो गई, और कोई ऑफिस में भी क्या सोचना है, भाई ये तो व्हाइट ही पहनते हैं, तो कोई ये नहीं सोचा, चाहे उसके पास 1 भी हो चाहे 10 भी हो, क्या फर्क पड़ रहा है। बाकी किसी और के सवाल है तो अपना सवाल पूछ सकते हैं, या फिर अपना। थैंक यू नीरज जी। Thank you, Piyush Bhaiya. Very, very simply explained, and such important stuff. मतलब वो राग नहीं करना, simple explanation, but very, very deep insights. Thank you so much. और actually मैंने भी अहिंसा की यहाँ तक परिभाषा नहीं सोची थी, भावों तक सोची थी, लेकिन ये राग नहीं करना तक was a new revelation. And similarly for the other 2 concepts also. तो अभी हम डॉक्टर विभा है, डॉक्टर विभा, if you want to add anything before we get on to the questions. Yes. Yeah. नहीं, yes, definitely I want to add something. Like पीयूष जी ने excellent बताया हर चीज, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करके बताया गया है। जिन्होंने 4 तरह की हिंसा के, बहुत ही अच्छा है। राग बहुत बड़ा पॉइंट है जो हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हिंसा का कारण राग ही है, बट जहां जहां राग है वहां वहां द्वेष तो है ही है, वो गर्भित है उसमें। अगर वो चीज मेरे को ना मिले तो मैं उसमें द्वेष करूंगी ही करूंगी। जब तक मुझे कोई चीज मिलती रहती है तो वो उसमें राग का रहता है। और एक कॉन्सेप्ट आया है, रतनकंड में भी आया है, पुरुषार्थ सिद्धि में भी आया है, कि राग का राग, ये हमें समझना है कि राग का राग क्यों, क्योंकि राग जहां है वो राग क्यों उत्पन्न हुआ, किसी से भी, चाहे हस्बैंड को वाइफ से हुआ, या किसी बाहर की पुद्गल चीजों से हुआ, मेरे घर में ये गाड़ी से हुआ, अपनी जॉब से हुआ, किसी भी चीज से हुआ, तो वो क्यों हुआ, सबसे बड़े मुझे वो समझना है। और वो ही मूल हिंसा का कारण है। राग 100% हिंसा का कारण है, बिल्कुल कहा पीयूष जी ने। अगर मैं उसको भी एक स्टेप फर्दर चली जाऊं तो मुझे पता चलेगा कि राग हुआ क्यों, क्योंकि इन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि मुझे जड़ से वो चीज अगर हटा दूंगी तो आगे बाहर का जो रही है, जो दिख रहा है, वो सब चीजें खत्म जाएंगी। तो जड़ से मैं कैसे आऊं, केवल हमारी जो मान्यता है वो गलत है। इसीलिए सब रागों की उत्पत्ति जो होती है हमारी मान्यता के कारण होती है। क्या मान्यता अब हमारी क्या गलत है? क्योंकि जो मैं हूँ उसको मैंने अपने को, जो मैं हूँ उसको मैंने अपना माना नहीं, और जो मैं नहीं हूँ उसको मैं अपना मान लूं। तो अपने को ना पहचानना ही सबसे बड़ी हिंसा है। आप सोच के देखिए, जो मैं नहीं हूं उसको मैं कह रही हूँ ये मेरा है। सपोज 2 मोबाइल फोन रखे हैं, मैंने दूसरे मोबाइल फोन को, क्योंकि मैंने अपने मोबाइल फोन को पहचाना नहीं, इसलिए किसी और का मोबाइल फोन को कह दिया कि मेरा है। अब आप देखिए, जब मैंने दूसरे के मोबाइल फोन को अपना कहा तो दूसरे के मन में कितनी बड़ी हिंसा की है मैंने। पूरा चोरी का पाप लगता है, और दूसरे के विकल्प उठे कि मेरे मोबाइल को इन्होंने अपना कह दिया। मैं केवल व्यवहार का एग्जाम्पल दे रही हूँ, और हमेशा ध्यान रखिएगा जो व्यवहार का एग्जाम्पल होता है परमार्थ में पूर्ण सत्य नहीं होता, ठीक है। बट व्यवहार का एग्जाम्पल इसलिए लिया जाता है क्योंकि हम सब व्यवहार में कार्य करते हैं तो हमें जल्दी समझ आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब मैंने अपनी चीज को पहचाना नहीं, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। वो हम रोज देखते हैं, रोज डेथ होती है तो आत्मा उसमें से निकल के चली जाती है, और जो मैं नहीं हूँ वो यहाँ छुट जाता है। और मेरी मान्यता क्या गलत चल रही है?
कि जो मैं नहीं हूं उसे कह रही हूं मैं हूं, और जो मैं हूं उसको पहचान नहीं रही कि ये मैं हूं। तो मेन जो हिंसा अगर आप देखें तो हिंसा का स्टार्टिंग पॉइंट ये विकल्प है, ये गलत मान्यता है। अब क्या हुआ, मैंने ये गलत मान्यता मानी और आगे जाके व्यवहार में एक हिंसा, दूसरी हिंसा, तीसरी हिंसा करते चले गए। अब मैं स्थूल हिंसा, जैसे पीयूष जी ने कहा, मैं स्थूल हिंसा की तो बात ही नहीं कर रही, क्योंकि हम सबको पता है कि वो सब स्थूल हिंसा है। मैं केवल 5th लेवल, थोड़ा सा और अंदर जाके बात कर रही हूँ। जो चारों पीयूष जी ने कहा वो बहुत ही एक्सीलेंट कहा। अब उसके अंदर जाया जाए, क्योंकि जब राग का, मेरा मान्यता ये है कि राग की जड़ पे पहुंच जाओ कि राग उत्पन्न क्यों हुआ, तो और उस जड़ को खत्म कर दीजिए, तो आप बताइए ट्री कब तक जिंदा रहेगा। जब राग मेरा खत्म हो जाएगा, जब उसकी जड़ खत्म हो जाएगी, तो आगे तो वो आगे से परिग्रह हो रहा है, उसकी वजह से आगे सारे जितनी कषाय हो रही हैं वो सारा उसी की उत्पत्ति है। आप कोई भी कषाय देख लीजिए, राग को हमने मेन कहा, बिल्कुल ठीक है, परंतु आप बाकी सारी कषाय भी देखिए, उसी राग के कारण है। क्रोध उसी कारण है, मान उसी के कारण है, लोभ उसी के कारण है। तो पीयूष जी ने इतना सुंदर ये पॉइंट बताया कि जड़ पे अगर हम काम कर लें तो आगे के तो चीजें जो पत्ते हैं वो कभी हरे रहेंगे ही नहीं। अगर जड़ सूख जाएगी, जड़ ठीक हो जाएगा, जड़ सूख जाएगी मतलब राग खत्म हो जाएगा, तो फिर जब राग की जो जड़ है, जो मेरी मान्यता खत्म हो जाएगी, तो ना आगे की टहनियां होंगी, ना पत्ते होंगे। तो आप चाहे परिग्रह को देख लीजिए, चाहे हिंसा को देख लीजिए, चाहे आप पॉइंट ऑफ व्यू को देखिए, जैसे स्वादवाद है, अगर आप देखेंगे जहां मान्यता ठीक हो गई तो कथन शैली ठीक हो जाएगी। आप सोचिए, जहां मेरे को ये समझ आया कि जो हस्बैंड ने मुझे कहा वो मेरे क्या है, कर्म का उदय है, और मैं तो उन पुद्गल शब्दों से बिल्कुल अलग हूं। आप मुझे बताइए, किसी ने मुझे अच्छा कहा या बुरा कहा, क्या मैं जो हूं आत्मा, क्या उस पे वो असर पड़ा? उस पे इतना सा भी इफेक्ट आया? नहीं आया, नहीं आया। तो क्या हुआ, मैं तो उससे अछूता रह गया, और मैंने क्योंकि ये माना कि मैं शरीर हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं सीईओ हूं उस कंपनी का, तो मेरे जूनियर को मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। ये बताइए ये कहां से आया? ये केवल जब मैंने अपने को मान माना, जब मैंने इसे सीईओ मैंने अपने को माना, मैंने हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अपने को माना, तो ये कहा कि दूसरे को ऐसे कैसे बोल सकता है वो, परंतु वो तो मैं हूं ही नहीं, केवल एक मान्यता ही तो है मैं कि मैं हेड हूं इस कंपनी का। तो अगर आप देखें तो मूल इन तीनों चीजों की जो मूल बेस है, जो मूल कल्प्रिट है, जो मूल मेन रीजन है, वो केवल ये है कि जो मेरी मान्यता में कमी आ गई, जो मेरी मान्यता मैंने गलत कर ली। आप एक दफा सोच के देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप एकदम अभी मुनि महाराज बन जाइए या आर्य का दीक्षा दे लीजिए, मैं वो नहीं कह रही, मैं अभी मान्यता पे काम कर रही हूँ। आप मुझे बताइए, हम लेडीज जनरली ये कहते हैं कि अगर मैंने घर का काम नहीं किया, मैंने खाना नहीं बनाया, मैंने बच्चों को नहीं पाला, तो देखूंगी ये कैसे घर चलेगा। आप मुझे बताइए, ये केवल मेरा कर्तव्यपना मान्यता ही तो है। आप बताइए तो सही, क्या मैं आज चली जाती हूँ तो घर चलता है या नहीं? सबका अपने कर्म अनुसार चलता है। तो अगर मैंने इस मान्यता पे ठीक कर लिया, मैं खाना बनाऊंगी, मैं घर चलाऊंगी, मैं नौकरी करूंगी, मैं सारे काम करेंगे, परंतु उसके अंदर की मान्यता ये रखें कि मैं इन कार्यों को करने वाली नहीं हूं, मैं मात्र स्वाभाविक आत्मा हूं। मेरा स्वभाव विभाव करना नहीं। पीयूष जी ने बहुत सुंदर बोला था कि विभाव भाव परिग्रह है, विभाव भाव हिंसा है, बिल्कुल, क्योंकि मेरा काम स्वाभाविक है, ज्ञाता दृष्टा है, हर चीज को जान रही हूँ, देख रही हूँ, परंतु उसमें कर्तापना नहीं है, क्योंकि मैं मूल से कर्ता
हो ही नहीं सकती। और जिस चीज जो कार्य में कर नहीं सकती उसको कार्य को मैंने कहा मैंने किया। तो आप बताइए क्या ये हिंसा नहीं है? ये तो हिंसा ही है। अपने को ना पहचान कर दूसरे की चीज को कहना, पुद्गल को अपने आप कहना कि मैं हूं, वो तो पॉसिबल ही नहीं। अगर हम ध्यान से सोचें, विचार करें 10 मिनट के लिए शांत होके, तो देखेंगे और अपने दिमाग में आएगा कि मेरी भावना कितनी गलत है, मेरी मान्यता कितनी गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। और हिंसा, परिग्रह, आप जो मर्जी लेके देखिए, जो परिग्रह है, बाहर का परिग्रह, जैसे पीयूष जी ने कहा बिल्कुल ठीक है कि हमें उन सब चीजों को कम करना है, बिल्कुल करना है, क्यों नहीं करना। किस लिए करना है? इसलिए करना है कि मेरी जो स्वाभाविक दृष्टि है, जो मेरा इतना उपयोग है, वो बाहर में ना जाकर अपने अंतर, अपने स्वभाव को जानने के लिए बचे और मैं उसमें लगाऊं। तो ये बाहर के व्यवहार का है कि मुझे परिग्रह कम करना है, मुझे व्रत नियम संयम करना है, जो पीयूष जी ने भी कहा, बाकी सब भी सहमत हैं, बिल्कुल करना है। क्यों करना है? उसका मूल जड़ क्या है? वो जड़ इसलिए कहा गया कि जिससे कि मेरा, देखिए, उपयोग को सपोज मैं मान लूं कि 100 है, तो 100 उपयोग में सपोज 100 पॉइंट्स मान लेते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, तो उसमें से अगर 60 पॉइंट्स मेरे बाहर में या 80 पॉइंट बाहर के परिग्रह में लग रहा है, बाहर की चीजों में लग रहा है, तो कितना सा उपयोग की मेरी दृष्टि बची जो मैं अंदर ले जाऊं, अपने को पहचानने में लगाऊं। तो और क्या है, क्यों कहा गया बाहर का, कि अगर मैंने उन सब चीजों को में से अपना उपयोग को समेटा, तो जितना उपयोग समेटा वो ज्यादा मैं अपने को पहचानने में लगा सकती हूँ। तो बहुत ही सुंदर पीयूष जी ने कहा, दिल गदगद हो गया। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और एक्सप्लेन करने का तरीका, आपको इतनी इजी वे में, इतना अच्छा टॉपिक को इतनी इजी वे में आपने बताया, रियली अप्रिशिएबल। थैंक्स। थैंक यू डॉक्टर विभा। और आपने भी एक अलग ही लेवल पे ले गए आप उसके बाद कि अपनी अपने को ना पहचान कर दूसरी चीजों में लगे रहना, या that was also another level. Thank you so much for that kind of insight. That was just amazing. उसे तो एक दो बार सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा और उतारना पड़ेगा। So thanks. और किसी के, परंतु देखिए, जड़ तो वहीं से खत्म होगी। अगर हाँ, हम राग को कहते हैं कि हम दबा, वो दबाना चीज हो जाएगी, वो जड़ नहीं खत्म होगी, तो वो कभी ना कभी फिर उभर के आ जाएगा। और ये नहीं है कि हमें छोड़ना है, ये सब चीजें घर गृहस्थी छोड़नी है, केवल मान्यता को ठीक करना है कि मैं करने वाली नहीं, मेरा स्वभाव ये है। अगर मैं अपने स्वभाव में आ जाऊंगी तो ऑटोमेटिक जो हिंसा है, जो परिग्रह है, वो धीरे धीरे अंकुश पे आ जाएगी, कम होती चली जाएगी। तो उसमें हमें प्रेरणा, वो तो अपने आप ही कम हो जाएगी। शुरू में प्रयास करना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे हमें वो मार्ग अच्छा लगने लगेगा, और अपने स्वभाव का मार्ग तो हमेशा ही अच्छा लगेगा। ग्रेट, बहुत ही अमेजिंग। आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट, लेकिन पहले दूसरों से रिक्वेस्ट करेंगे, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई प्रश्न हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन था पीयूष भैया, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक क्योंकि पहले हमारे कई सेशंस होते हैं, कई बार लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है जैनिज्म, और ये जो फंडामेंटल सेशन लगते हैं तो देखते हैं कि लगता है कि सिंपल भी है, डिफिकल्ट भी है, लेकिन सिंपल भी है। तो थैंक यू सो मच टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स थिंग्स। एंड जस्ट वन क्वेश्चन आई हैव कि जैसे एक तरफ बोलते हैं अहिंसा और बोलते हैं अपरिग्रह, दे ऑल रिलेट टू ईच अदर। अनेकानवाद उसी पैरेलल, उसी लेवल पे रखा गया इस कॉन्सेप्ट को भी। तो इज इट आल्सो अनेकानवाद इज टू रियली प्योरीफाई एट द सोल लेवल, थॉट लेवल, कि नॉट टू बी अटैच्ड टू अ व्यू पॉइंट। मतलब अनेकानवाद एक तरह से हो गया, एक व्यवहारिक वो हो गया एक तरह से, राइट? जैसे I'm just trying to understand at the same 4 fundamental pillars में अनेकानवाद कैसे फिट होता है with the other 3?
इसमें देखिए अनेकांतवाद क्या चीज है। एक वस्तु अनेक गुणात्मक है, एक वस्तु में बहुत सारे गुण हैं। आप इसको मैं बहुत ही इजी एग्जांपल से बताती हूँ। मैं एक हूँ, ठीक है, मैं एक विभाजन हूँ, परंतु मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की चाची हूँ, किसी की मामी हूँ, किसी की आंटी हूँ, किसी की मदर हूँ, किसी की सास हूँ। तो अब आप बताइए, मैं तो केवल एक चीज हूं ना। अब उसी चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्क्राइब किया गया कि अपने बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मदर हूँ, बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मदर हूँ, बहू के पॉइंट ऑफ व्यू से मदर इन लॉ हूँ, दूसरे एक और भैया के बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चाची हूँ, ताई हूँ। तो आप देखिए कोई भी एस्पेक्ट गलत नहीं है, बट जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बताया गया उस समय, सपोज मुझे किसी ने कहा चाची, चाची जी, तो उस समय क्या मैं मम्मी नहीं थी? नहीं, तो ये तो समझ में आ गया विभा जी। और एक मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, जैसे और जब कोई समझता है कि इवन हिंसा भी ठीक है, सपोज करो, जब हमें पता है कि अहिंसा ठीक नहीं है, तो अनेकांतवाद का मतलब तो नहीं कि वो भी ठीक हो जाए, क्योंकि नहीं एक नहीं फंडामेंटल बिलीफ की बात है, नहीं, राइट? ये गुणों के रेस्पेक्ट में बताया गया कि मेरे में वो सारे हैं गुण। और जब मेरे में सारे गुण हैं, तो आप बताइए, जब हम बोलेंगे तो मैं एट ए टाइम एक गुण को मुख्य करूंगी, और बाकी गुण उसमें विद्यमान उस समय भी हैं जब मैं एक की बात कर रही हूँ, परंतु बाकी गुणों को मुख्य करके नहीं बोला गया, उनको गौण कर दिया गया। ठीक है, अब आप देखिए, सपोज किसी को भी डिस्क्राइब करते हैं, हम क्लास में पढ़ाते हैं, या आप भी कोई भी एक मीटिंग करते हैं, तो एट ए टाइम मेन पॉइंट को बोलते हैं, देन उसके नेक्स्ट पॉइंट को बोलते हैं। परंतु जब मेन पॉइंट बोल रहे हैं तो उसमें वो सब पॉइंट उस समय विद्यमान है। तो दैट इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज। या नहीं, बट मेरा एक जो रिलेटेड पॉइंट था, मे बी आई वाजंट क्लियर, कि समझ में आ गया, से अनेकांतवाद में है कि देयर कुड बी मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज, राइट? अब हम प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल लेते हैं कि कई लोग समझते हैं कि हिंसा में क्या दिक्कत है, नॉनवेज खाने में क्या दिक्कत है, राइट? व्हाइल वी बिलीव कि हिंसा गलत है, राइट? तो ये तो नहीं कि मल्टीप्लिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, राइट? तो मतलब व्हेन आई डील विद पीपल, हाँ, तो मतलब ये है कि ये नहीं कि हर चीज सही है, देयर आर थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग, बट ये इज इट समथिंग कि आई कैन एक्सप्लेन माय व्यूज बट डू नॉट गेट अटैच्ड। मैंने अपना काम कर दिया, आई डोंट नीड टू चेंज माय व्यूज, एंड आई डोंट नीड टू थिंक समबडी हु हैज अ डिफरेंट व्यू इज रॉन्ग, राइट? मतलब मैं व्यू को रॉन्ग मानूं, मतलब पर्सन को रॉन्ग नहीं मानूं। मतलब हाउ डू आई अप्लाई प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में? मतलब practically you can apply, see, just see that मैं एक आत्मा, और जो दूसरे जीव को मार के मैं खा रही हूँ वो भी एक आत्मा। आप मुझे बताइए, मेरे एक सपोज सब्जी काट रही थी और उसमें मेरा थोड़ा सा चाकू लग गया मेरे उंगली पे, कितना पेन है मेरे में, कितना पेन हुआ इतना छोटे से पॉइंट से। और जब हम दूसरे जीव को, चाहे वो किसी भी फॉर्म में है, जैसे पीयूष जी ने बहुत कुछ बताया कि ये दूसरे ह्यूमन बीइंग को आपने किया, एक मुर्गी को किया, एक किसी और को काट के खाया, उसमें भी वही जीव है। सपोज मैं क्लीनिंग कर रही हूँ घर की, जब पानी बिखेरा, तो पानी बिखेरे में जितनी चींटियां थी सब मर के चली गई। तो दैट मीन्स that cannot be accepted, क्योंकि जब वो चीज दुख मेरे को होता है तो फिर मैं उसको फोर्स ही कर सकती हूँ कि दूसरे को भी उतना दुख हुआ, और दूसरे को दुख देना तो पूरा ही हिंसा है। agree with that, Vishal. The way I see it is this, right? कि we're not saying कि कोई ऐसी absolute truth नहीं, but इस आपका पॉइंट को मैं इस तरह से लूंगा कि एक तरफ हम जैन धर्म में ये कह रहे हैं कि हम किसी को मार ही नहीं सकते, राइट? तो ये कह रहे हैं कि भाई हमने किसी पशु को भी कैसे मारा जब मार ही नहीं सकते। तो मैं अनेकांतवाद यहां पर लगाऊंगा कि हम उसको अगर द्रव्य की दृष्टि से देखें तो नहीं मार सकते, लेकिन पर्याय की दृष्टि से तो देखें तो मार सकते हैं। तो यहां पर अनेकांतवाद लगाया, पर अनेकांतवाद और स्वादवाद का मतलब ये नहीं है कि हर पॉइंट ऑफ व्यू करेक्ट है। मतलब all it is saying is there could be multiple ways of looking at things.
तो बिल्कुल। उसमें ये कहने का तरीका ये है कि जीव की दृष्टि से देखा जाए तो किसी को नहीं मारा, दूसरी तरह से देखा जाए तो वो उस बकरे ने अपने कर्म किए थे इसलिए उसको कष्ट हुआ, तो एक तरीका से ये भी देखा जा सकता है मैंने उसे कष्ट नहीं दिया क्योंकि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। पर तीसरी दृष्टि से देखा जाए तो जो मेरे भाव है, वो मेरे भावों में उसे मारने का जो भाव पैदा हुआ वो हिंसा है, उसके मेरे कर्म बंधे वो भी सत्य है। तो पॉइंट इज दिस कि उसका मेरे जो हिंसा हुई वह भी सत्य है, वो गलत है इसलिए वो भी सत्य है, और लेकिन मैं किसी जीव को मार नहीं सकता, ये भी सत्य है। So that's how I would बिल्कुल apply ठीक है। Nekant Radhan sir. नहीं, बिल्कुल पीयूष जी, आपने ठीक कहा कि इसमें हम ये भी लगा सकते हैं, जैसे आपने कहा कि उसका आयु क्रम इतना ही था तो वो मेरे निमित्त से मरा। ठीक है, ये मानती हूं मैं इस बात को, परंतु उसमें यहाँ पे जहां भी जैन धर्म को आगे बढ़ाया गया है वो पुरुषार्थ को मुख्य करा है। बिल्कुल ये फैक्ट ऑफ द लाइफ है कि उसका कर्म ऐसा ही था, उसको ऐसे ही मरना था, इसी निमित्त से मरना था, ऐसे हुआ। परंतु अगर पुरुषार्थ को मुख्य करके नहीं हम करेंगे तो मैं तो एकांतवादी हो जाऊंगी। जो आपने कहा कि एकांतवादी क्या हो जाऊंगी जी, उसके कर्म में लिखा था तो मेरे से तो गोली चल गई, ये ऐसा ही होना था, ये तो भगवान के ज्ञान में ऐसे ही लिखा था इसलिए हो गया। ठीक है, ये तो उसके कर्म में ऐसे लिखा था। तो जो वो एकांतवाद आ जाएगा ना, उसको खत्म करने के लिए जीव को बताया गया कि देख तूने खराब भाव किए थे, अब मैंने गोली चलाई, परंतु ये भी कथन सत्य है कि अगर उसका आयु क्रम अभी शेष है तो मेरी गोली चलाने से वो नहीं मरेगा, वो पर्याय चेंज नहीं करेगा, वो उसी पर्याय में रहेगा। तो दोनों चीजों को जब साथ साथ लेके चला जाएगा वो ही सम्यक पुरुषार्थ रहेगा। बिल्कुल आपने 100% ठीक कहा है कि अलग अलग, देखिए अलग अलग नय हैं, व्यवहार नय है, निश्चय नय है, जैसे आपने कहा शुद्ध निश्चय नय है, तो बिल्कुल ठीक कहा आपने। और इसी तरह से अगर हम समझेंगे तो सम्यक उसकी प्ररूपणा की जाएगी। जो भी इंसिडेंट कह रहे हैं उसका सम्यक रूपांतर इसी तरह से होगा जब हम दोनों एस्पेक्ट साथ साथ लेके चलेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जैन धर्म तो जीवन जीने की कला सिखा रहा है, जब कला सिखा रहा है तो उसमें ना हिंसा है, ना स्वार्थ, ना आपका परिग्रह है, कुछ भी नहीं है। विशाल जी, आपका जो क्वेश्चन है उसको अगर मैं समझूं तो इस तरह से पॉइंट है कि अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि हिंसा सही है, जैसा कि हम देखते हैं इस दुनिया में आतंकवादी होते हैं, वो अपने हिसाब से लोगों को मार देते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति किसी जानवर को मार करके खा रहा है, अगर वो कहता है कि नहीं वही सही है, उसके लिए वो ठीक है, तो उसमें अपन अनेकांत और स्यादवाद कैसे लगाएं? तो जो मेरी समझ है वो ये कि अनेकांतवाद और स्यादवाद उस तथ्य में लगता है या उस गुण में लगता है जो सत्य है। अब ये सवाल उठ सकता है कि आप सत्य किस हिसाब से आप परख रहे हैं, जो मेरे लिए सत्य हो सकता है दूसरे के लिए सत्य ना हो, तो ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हो जाता है। तो प्रैक्टिकली जो व्यवहारवाद से अगर मैं देखूं, ऐसी स्थिति में अगर ऐसा कोई होता है, कोई मुझसे आके बोलता है नहीं भाई हाँ आप जो कहते हैं वो आपकी मर्जी है, भाई हम तो नॉन वेज खा लेते हैं तो हमारे उसके लिए तो हमें जानवर को मारना पड़ेगा, तो उस वाले डिस्कशन में ना मैं अनेकांतवाद लगाता हूँ ना स्यादवाद लगाता हूँ, मैं उससे अपने आप को डिटेच कर लेता हूँ। तो वो हो गया मेरे लिए अनेकांतवाद। ना उसमें मुझे अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू लगाना है, ना कोई एक्सेप्टेंस देनी है, ना ही मुझे उससे कोई लड़ाई नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पे निश्चयवाद के हिसाब से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि अगर मैं वहाँ डिस्कशन में पड़ जाऊंगा तो मतलब मैं तो हिंसा में मैं भाव हिंसा करने लग गया, मेरा मन तो खराब हो गया, चाहे उसको बुरा लगे अच्छा लगे वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन मेरा तो भाव खराब हो गया ना। तो मैं निश्चयवाद का अनेकांत लगाते हुए उससे डिटेच कर लूंगा। तो बात यही आती है कि जो हम सम्यक दर्शन की बात करते हैं 8 अंगों की, तो हमारे लिए तो बिल्कुल सही है कि अहिंसा ही हमारा धर्म है और वही एक सत्य है। जब हम 10 लक्षणों की बात करते हैं और हमारा उत्तम सत्य धर्म आता है तो उसमें सत्य जो व्यवहारिकता में तो सत्य है कि जिसको जैसा नहीं कहा जैसा है उसको वैसा नहीं बोलना, वो सत्य नहीं है। पर अल्टीमेट ट्रुथ जो है, अल्टीमेट सत्य है कि मोक्ष प्राप्ति, वो एक मुख्य हमारा सच्चाई सत्य वो है। तो जो भी विभा जी ने और पीयूष जी ने बताया कि निश्चयवाद और व्यवहारवाद, इन सब का उपयोग करते हुए इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और कोई ये व्यक्ति कहता है कि हिंसा ही उसके लिए सही है क्योंकि उसको नॉनवेज खाना है, तो मेरा अनेकांतवाद ये है कि निश्चय के हिसाब से मैं उससे डिटेच्ड हूँ, मुझे उसमें कोई डिस्कशन नहीं करना है, उसमें कोई पढ़ना नहीं है, ना अपने भाव खराब करने।
मेरा और मेरा एक नो बिल्कुल आपने ठीक है, और एक और जो मैं बोलूंगा उसमें ये कि देखो मैंने अपना व्यू दे दिया, दूसरे का जो व्यू हो नहीं हो, वो ठीक हो नहीं हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे इससे टच नहीं होना है कि वो बंदा मैं क्यों ठेका लूं किसी और को ठीक करने का, बिल्कुल राइट? भैया तुम्हारा व्यू है, मुझे उसमें भी राग नहीं करना कि उसको ठीक करने चला हूं, मैं अपने पे काम कर रहा हूँ, and maybe I'm open to viewpoints. That doesn't mean that I need to leave my viewpoint. I become stubborn कि नहीं ये तो बिल्कुल ही ठीक है। तो मैं जहां तक मैं ओपननेस दिखा रहा हूँ, और मैं ओपननेस हमेशा उसको परखता रहता हूँ कि मैंने बार बार परखा, किसी ने बोला ठीक है, अच्छा बताओ क्या बताते हो, फिर मैंने आपस परखा, फिर मैंने बोला नहीं अहिंसा ही ठीक है। तो जब तक मैं परख रहा हूँ तो उसमें मैं अनेकांतवाद को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं स्टिल आई एम ओपन टू मल्टीपल व्यू पॉइंट, बट दैट डजंट मीन कि मैं जो मुझे सत्य नहीं लग रहा है उसको मान लूं, और आई शुड नॉट गेट अटैच कि दूसरा बंदा मान रहा नहीं मान रहा, डजंट मैटर टू मी, राइट? कि दैट्स द वे। बट थैंक यू सो मच नीरज जी, पीयूष जी। विशाल जी आपने बहुत ठीक कहा कि आपने परखा, ये मैं भी यही कहने वाली थी कि आपने क्योंकि बार बार परखा है इसलिए आपका श्रद्धान पक्का हो गया, और बस जैन धर्म पूरा श्रद्धान पे ही तो टिका हुआ है। तो जहां परखना वर्ड आ गया वहां तो ये आप व्यू पॉइंट डिफरेंट ओपन करेंगे, सुनेंगे, तो क्योंकि आपका श्रद्धान पक्का हो चुका है तो आप उससे डिगेंगे ही नहीं। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ओपन किया आपने, परंतु जहां श्रद्धान पक्का है वहां तो हम अपने ही श्रद्धान पे अड़े रहेंगे कि हमारा ही ठीक है, वहां वर्ड ही आ जाएगा। बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच। अनेकांत में भी आता है। देखिए एक होता है भी और एक होता है ही, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, और दूसरा होता है ये ही ठीक है। ये दो चीजों में हमें बहुत डिमार्केशन रखना है, तो हमारा बिल्कुल जैन धर्म सम्यक चलेगा। तो अनेकांत में ही और भी दोनों आते हैं या ओनली भी? नहीं, जब हम एक ही पॉइंट ऑफ से करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ही ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ही ठीक है, बट ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। क्या मतलब हुआ कि एक वस्तु में ये सारे गुण हैं, ठीक है, परंतु जब मैं अभी ये बता रही हूँ ठीक है, बट इस पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये ठीक है, दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। दैट इज व्हाट इट इज, ही और भी। See, one thing, way to I look at it is, अनेकांतवाद का मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। अनेकांतवाद का सिंपल मतलब है कि मल्टीपल पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, और आपको पॉइंट ऑफ व्यू की सापेक्षता को समझना जरूरी है। दैट्स ऑल इट इज। इसका मतलब ये नहीं कि हर पॉइंट ऑफ व्यू सही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर मुझे कोई आज विभा जैन को कहे नहीं ये तो मनुष्य, ये तो जेंट्स है, मेल मेंबर है, तो ये थोड़ी मैं किसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेल मेंबर ठीक हूं। नो, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है, जितने गुण होंगे एक वस्तु में वो सारे गुण किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक हैं, बट जो चीज विद्यमान ही नहीं है वो तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होगा ना। So that is what we have to understand. Right. And this was again a deep discussion. कितना basic था कि multiple views can be there, but it doesn't mean that every view is correct. इतना basic था, लेकिन इतना discussion लगा इसे समझने में। Yeah. और किसी के questions? Any other questions from anyone? इसमें बस एक और चीज मैं बोलूंगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में कल को कोई भी किसी और धर्म की बात होती है तो वी जनरली सडनली टेक अ स्टेप बैक कि ये मिथ्या है, एज इफ देयर इज अ इनसिक्योरिटी फीलिंग कि हम दूसरे की बात भी सुनेंगे, मतलब वो है कि एज इफ हम अपने धर्म से दूर हो जाएंगे। जबकि एक हम बात करते हैं कि बीइंग ओपननेस टू डिफरेंट थॉट्स, और उसको करके हम अपने धर्म को पढ़ें, उसको परखें, उसको और ज्यादा श्रद्धांजलि लेके आए, rather than being very detached. I try to follow that. जबकि ये होता है कि यार ये मतलब ये क्या फॉलो किया, मतलब ये क्यों कर रहे हो, आप क्यों जा रहे हो, जबकि मेरे लिए है कि मैं तो ज्ञान देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान जहां से मिले, और उसके लिए ये मतलब नहीं कि मैं अपने, मेरा तो राधा जैनिज्म में डीप जो इंटरेस्ट हुआ आफ्टर डूइंग विपश्यना, व्हिच इज टेक्निकली वाज लाइक रीडिस्कवर्ड बाय बुद्धा, बट आई फेल्ट लाइक कि आई विल सी ज्ञान फ्रॉम वेयरएवर आई कैन,
बट दैट डजंट मीन कि आई हैव टू बी इनसिक्योर कि मैं कहीं और बैठा मतलब मैं दूर जा रहा हूँ। तो मैंने कई बार ये फील किया है कि हमें एकदम ये एक वो इनसिक्योरिटी हमारे में वो है कि हम बहुत माइनॉरिटी हैं, तो कई बार जो है कि वी डोंट वांट टू बी ओपन, बट आई हैव टू बी ओपन टू थॉट प्रोसेस, आई हैव टू बी ओपन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यूज, राइट? आई डोंट नो किसी का थॉट है, बट मैं बता रहा हूँ प्रैक्टिकली this is what I feel sometimes. I think I agree, Vishal ji, because we have to listen to others, no doubt about it, and we need to accept if something is right in there. मेरे को तो या हेलो हाँ विभा जी बोलिए। या विभा जी। हाँ नहीं, मैं कह रही थी कि ऐसा नहीं है कि हम माइनॉरिटी हैं तो वी कैन नॉट एक्सप्रेस। और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा कि अगर जो जैन भी नहीं है उनको अगर लॉजिकली बताया जाए तो दे एग्री विद आवर प्रिंसिपल्स, दे एग्री विद आवर प्रिंसिपल। अहिंसा है चाहे परिग्रह है, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग एंड दे ट्राई टू फॉलो इट अप। लाइक इन माय कॉलेज so many other people are there are very few Jains, but still whenever I tell them logically and scientifically, they agree with all these things. But we should definitely hear them, क्योंकि कोई और तो धर्म जो है वो बताते ही नहीं है इतना इन डेप्थ जाना, तो केवल ऊपर का बताते हैं। हाँ the moment अगर I show की non openness, then I create barriers, right? I have to be confident, rather मेरा जो confidence जैसे आज की सेशन के बाद भी, right? I have to be confident, make your एकदम है ना। हाँ see Vishal, look at the highest level, right? That if you look at all religions, and I would say that Jainism is the only one which is different, which is कि सारे religion एक भगवान की तरफ पूजा करते हैं कि there is God, एक या multiple, पर basically भगवान की पूजा करोगे आपका अच्छा होगा। Jainism is the only one which is saying कि आप basically मेरे दिमाग में क्या है कि भगवान की पूजा कर रहे हैं यानी आप मतलब उसकी चापलूसी कर रहे हैं भगवान की, तो या तो आपका बुरा ना हो या आपका उसका अच्छा हो। Somehow it doesn't make sense to me. A God being such a powerful thing cannot बिल्कुल कि जो उसकी चापलूसी करेगा उसका अच्छा करेगा। तो भगवान की पूजा फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मेक्स जीरो सेंस टू मी। बट हम भगवान की पूजा कर रहे हैं सिर्फ टू गेट इंस्पिरेशन एंड फाइंड माय ओन इनर, जो हमारी क्वालिटीज हैं, जो ज्ञान दर्शन, उसको समझने के लिए पूजा कर रहे हैं। बिल्कुल। और जैनिज्म ये कि आप अपने में जाओ, इट्स डिफरेंट एंड टू मी इट लॉजिकली मेक सेंस। तो आप सबको पढ़ो, अगर आपको लॉजिकली ये सेंसिबल लग रहा है कि नहीं एक भगवान की पूजा करना है, अगर उसकी पूजा नहीं करी तो आपके ऊपर बिजली गिरा देगा और आपका सब सत्यानाश कर देगा, देन फाइन, बट यू नीड टू अप्लाई योर ओन थिंकिंग एंड लॉजिक समटाइम्स। लेकिन क्या होता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जिसको पास लॉजिक नहीं होता है, उसको अगर हम एक्सपोज कर दें तो उसको कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। तो आई थिंक अप टू एन एज इट इज इम्पोर्टेंट टू give them की श्रद्धा हो कि नहीं आपको इसी रास्ते पे जाना है, ये रास्ता सही है, लेकिन at some point they will have their own logic and they will choose their own path. No harm in exposing them to all points of view. Yeah, बिल्कुल ठीक कहा आपने। And this is so scientific anyway, whatever we just discussed even, right? So I'll rather go with the scientific way of explaining it rather than शास्त्र में या किसी ने कहा है, because वो किसी ने कहा है क्या लिखा है, कई बार वो इवन हम भी लॉजिकली फॉलो नहीं कर पाते, बच्चे नहीं मानते उसको, लेकिन जो प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है, पीपल विल फॉलो। तभी जो हमने बात की इज अ वेरी साइंटिफिक वन, राइट? और वही है ना कि धर्म वही है जो धारण करे, हम जो धारण करते हैं उससे हमारा फायदा होता है, तो मतलब सही धर्म भी हो, हम फॉलो करते हैं तो फिर कन्विक्शन भी है उसमें फिर। बट थैंक यू सो मच। सिर्फ श्रद्धा से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, और आप पीयूष जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि भगवान वीतराग है, और क्या वीतराग भगवान को ये वो इस राग में अड़ेगा कि किसने अच्छी पूजा की उसको सामान दे दूं या उसको बाकी सुख सुविधा दे दूं, वो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। क्या होता है जब हम बहुत अच्छे से पूजा करते हैं, भावों से करते हैं, तो उससे हमारे जो कर्म बंधे हुए हैं, जो उदय में आने वाले हैं, उसमें उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है कि या तो वो मेरे खराब भाव हुए तो पाप का उदय बढ़ जाएगा, वो बढ़ के आएगा, या मेरे अच्छे भाव हुए बगैर किसी आशा के मैंने पूजा पाठ की तो वो मेरा क्या होगा कि जो मेरे पाप कर्म आने वाले हैं वो कम होके आएंगे। जब उसमें उत्कर्षण अपकर्षण होता है, यहाँ जैसे मान्यता है कि लाल मंदिर जाएंगे आप कुछ मांगेंगे तो आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, ये बिल्कुल गलत मान्यता है।
क्या होता है, हम इतने विश्वास से, इतने मन लगा के वहां पे पूजा करते हैं कि क्या होता है कि हमारे कर्मों में हेर फेर होती है, उत्कर्षण अपकर्षण हो जाता है, जिससे कि हमें वो चीज की प्राप्ति या तो हो जाती है या दुख आता है तो कम होके आता है। तो दिस इज द फैक्ट। वीतराग भगवान को यही काम रह गया कि वो एक जने को देखेगा, दूसरे अनंत जीव है, वो सब जीवों को अच्छा बुरा ही करते रहेंगे, कभी नहीं। वो तो वीतरागी हो चुके हैं। तो हम ये समझ के करें कि अगर मैं पूजा करूंगी और भगवान मुझे ये दे देंगे, तो भगवान ना देने वाले हैं ना लेने वाले हैं। ये तो मुझे अपने कर्मों का हिसाब किताब अपने आप करना है, यही बात होती है। बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल गलत है। I think Sabi should wrap up the Any session. questions? Thank you Any very much. other questions from anyone? किसी के और कोई प्रश्न? तो एक मेरा वैसे ही प्रश्न था, जैसे मान लीजिए कोई कोई ऐसी लाइफ इंसिडेंट होता है जिसे मतलब ऐसा लगता है कि क्यों हुआ, तो क्या मतलब फिर एक थॉट आता है कि चलो ये भी भगवान के ज्ञान में झलका होगा। तो मतलब एक ये ज्ञान में झलकने में मतलब फिर तो हर ही चीज के लिए एक्सेप्टेंस आ जाएगी ना। तो और आनी भी चाहिए, लेकिन मतलब जस्ट अ लिटिल मोर ऑन दैट, इफ यू कैन थ्रो लाइट। देखिए उसमें क्या होता है, अब बहुत ध्यान से थोड़ा समझना पड़ेगा। क्या होता है, भगवान के ज्ञान में झलका है क्योंकि भगवान केवल ज्ञानी है। केवल ज्ञानी है, केवल ज्ञानी का क्या मतलब है, समस्त जीवों के समस्त पर्याय, तीनों कालों की समस्त पर्याय को वो युगपत जानते हैं। युगपत मतलब एक के बाद एक के बाद एक नहीं जानते, वो सभी पर्यायों को समस्त जीवों की युगपत जानते हैं। अगर मैं ये वर्ड बोलूं जो जानते वर्ड है, तो जानने वर्ड में तो आ गया राग, और भगवान है वीतरागता। तो एक्चुअली वर्ड क्या होता है, ये व्यवहार की लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि वो युगपत जानते हैं, समस्त जीवों के समस्त पर्याय तीनों कालों के वो सारा पूरा बोलते हैं। बट ये व्यवहार की लैंग्वेज है कि वो जानते हैं। जानना मतलब मैंने आपको जाना, मतलब मेरे दिमाग में आपके प्रति सारे विकल्प आए, ये अच्छी हैं, बोलती अच्छी हैं, मतलब सारे विकल्प आए, ठीक है। और वीतराग भगवान के विकल्प तो है नहीं, वो तो वीतरागी हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें अप्रोप्रिएट वर्ड जो आता है कर्मकांड वगैरह में आप देखिएगा, तो उसमें होता है झलकते हैं। अब शीशे में मेरी फोटो झलकी, ये पूरा मैं आपको अभी पहले भी बता रही थी कि कोई भी जो व्यवहार का एग्जाम्पल होता है कभी भी 100% करेक्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि उसमें चेतनता नहीं है। शीशे में फोटो झलकी, मैं सामने खड़ी हुई, उसमें फोटो झलकी, क्या शीशे के अंदर कोई विकल्प आया? शीशे ने जानी नहीं, शीशे के अंदर झलकी, तो शीशे में कोई विकल्प नहीं आया। क्या शीशा विभाजन रूप हो गया? नहीं हुआ। शीशा शीशा रहा, विभाजन विभाजन में रही। ऐसी शीशे में उपादान की शक्ति थी कि उसमें झलकाने की शक्ति थी, इसलिए जब मैं आगे गई तो मेरी फोटो बन गई। परंतु ना विभाजन शीशे में गई, ना शीशा विभाजन में आया, शीशा शीशा रहा और विभाजन विभाजन। ये ही इसी तरह से अगर समझें कि भगवान के ज्ञान में सब कुछ झलका, परंतु भगवान ने कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प मान लेंगे तो जैन धर्म गलत हो जाएगा कि सर्वज्ञ है वीतरागी है। सर्वज्ञ हैं परंतु वीतरागी भी तो है, इसका मतलब एक भी राग का क्षण नहीं है। 14वें गुण स्थान पे पहुंच गए तो जहां राग खत्म हो चुका है, तो फिर हम उसमें राग नहीं ले सकते। अब झलका, अब इस वर्ड को देखिए, झलका, उन्होंने झलक गया, उनके ज्ञान में झलक गया, परंतु उन्होंने अपना उपयोग उसमें नहीं जोड़ा। जब तक उपयोग नहीं जोड़ा, क्योंकि वो वीतरागी थे, तो ना कोई बंध, जैसे ही अगर आप कहेंगे जानना तो बंधन शुरू हो जाएगा।
तो इसलिए झलका वर्ड करेंगे। अब आपने प्रश्न था कि उसमें आपका प्रश्न था, हाँ सब कुछ झलक गया तो फिर क्या हुआ, फिर तो सब कुछ पहले से पता है उन्हें, तो फिर मेरा पुरुषार्थ क्यों? ये शायद अगर मैंने प्रश्न ठीक समझा है तो आप पूछ रहे हैं फिर मैं पुरुषार्थ क्यों करूं? क्या वो पुरुषार्थ जो मैं कर पा रही हूं वो भी तो भगवान के ज्ञान में झलका था, वो भी तो भगवान के ज्ञान में झलका था। तो जब मैं पुरुषार्थ करने की पहला स्टेज है, मैंने समझा, फिर उस मार्ग पे चलने की कोशिश की, चली, तो वो सब भी तो भगवान के ज्ञान में झलका था कि मैं चौथी भव में मोक्ष चली जाऊंगी, तीसरे भव में मोक्ष चली जाऊंगी, या मैं नहीं जाऊंगी। तो मेरा पुरुषार्थ उसी हिसाब से आगे होगा। परंतु फिर से कहेंगे फिर तो मैं पुरुषार्थ करूंगी नहीं, जो होना है, जैसा होना है, जैसा पुरुषार्थ होना है वैसा होगा नहीं। जब तक मैं अपनी गलती का एहसास नहीं करूंगी तो वो पुरुषार्थ भी नहीं जगेगा। तो एक कर्मपद पर्याय पे पूरा एक बहुत अच्छी किताब है, अगर आप लोग पढ़े तो उसे पढ़िए तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और कर्मपद पर्याय बिल्कुल ठीक है, अगर क्रमपद पर्याय ना हो तो भगवान के ज्ञान में झलकेगा कैसे, ये भी बताइए। अगर मेरी पर्याय फिक्स नहीं हो एक के बाद एक, जस्ट लाइक ए मूवी के बाद एक के बाद एक के बाद एक सब पर्याय आपके सीन्स फिक्स्ड हैं, तो इसी तरह से मेरी भी पर्याय फिक्स्ड हैं, तभी तो भगवान के ज्ञान में झलकता है। नहीं तो कैसे झलकेगा आप बताइए, अगर फिक्स नहीं हो तो हमारा जैन धर्म इतना साइंटिफिक है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तभी आज के बच्चे को समझाओ रीजन वाइज तो वो समझते हैं, क्योंकि आज का बच्चा ये नहीं इम्पोज्ड धर्म नहीं मानेगा, साइंटिफिक धर्म को मानेगा, साइंटिफिक वस्तु के स्वभाव को मानेगा वो। ये बहुत डीप टॉपिक है, क्रमबद्ध पर्याय और पुरुषार्थ का महत्व। बहुत बहुत ज्यादा, ये उसको जस्टिस नहीं कर पाएंगे 5 मिनट, क्योंकि समझने में बहुत दिक्कत होती है, बट इट मेक सेंस। इट मेक सेंस, क्योंकि नहीं तो केवल ज्ञान में झलकेगा कैसे, आप मुझे बताइए अगर फिक्स ना हो तो। उनको मेरे अनंत पर्याय जो फ्यूचर की हैं, जो पास्ट है, सब झलक चुकी हैं, लेकिन तो उनको केवल झलक रही है, उनको झलक रही है, लेकिन उसमें भी जो पुरुषार्थ है वो तो मेरा ही है। इज इट करेक्ट? नहीं, पुरुषार्थ 100% आपका है। जब मैं व्यवहार दृष्टि से बोलती हूँ पुरुषार्थ आपका है, बट भगवान के ज्ञान में वो पुरुषार्थ भी झलका था। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है। हाँ। तो इसका मतलब भगवान के ज्ञान में जो चीजें अनुचित हो रही है वो भी झलकी है, जो चीजें उचित हो रही है वो भी झलकी है। तो वो तो वीतरागी होके झलक गया उनको तो, लेकिन वो जो अनुचित है वो उस पर्सन का ही पुरुषार्थ है, जो उसने उचित किया अनुचित किया। ये हम सबकी सोल जर्नी है, क्या ये कहा जा सकता है? सोल जर्नी है वो तो ठीक है, परंतु आप बताओ उचित और अनुचित आप तभी करेंगे ना जब आपको उसका एहसास होगा। अगर मुझे आज गलती अपनी पता नहीं चल रही कि मेरी मान्यता गलत है, तो बताइए मैं उसको इम्प्रूव कैसे करूंगी? मुझे गलती का एहसास होगा तभी तो मैं उस पर कार्य करना शुरू करूंगी। तो वो ही तो सबसे बड़ी चीज है मेरे ख्याल से, क्योंकि यही नहीं पता होता कि हम गलत कर क्या रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी चीज है। और अगर पता भी चल जाए, आपने मुझे टोक भी दिया, तो मैं विश्वास नहीं करूंगी कि मैं गलत हूं, क्योंकि ईगो इतनी बड़ी चीज है, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? नहीं, और ज्ञान भी नहीं है, और ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है। मतलब नहीं, मैंने कई दफा ऑब्जर्व किया कि ज्ञान अगर दूसरे से मिलता भी है तो इंसान मानने को तैयार नहीं होता। अगर मैंने कहा कि वो तभी नहीं मानते हैं ना, क्योंकि खुद को ही ज्ञान नहीं है।
दूसरे का ज्ञान तो समझ ही नहीं आएगा, खुद को ज्ञान नहीं है तो अब जैसे मतलब एक सिंपल ये होती है, जैसे आजकल कितना वर्ल्ड ओपन हो गया है, डेटिंग, लिव इन रिलेशनशिप, मतलब सब कुछ चल रहा है, तो मतलब अब कोई ज्ञान ही नहीं है कि क्या वो सही है क्या नहीं सही है, सब चल रहा है, तो मतलब आई डोंट नो। तो मेरा कहना है कि वो ज्ञान ही नहीं है, तो कोई कहेगा कि ये सही नहीं है तो कैसे समझ आएगा, और मतलब आई डोंट नो, बट दैट वाज अ थॉट। नहीं, बट आप समझाने की भी कोशिश करेंगे, हाँ, तो भी नहीं अगर समझ उसका आएगा ना निर्मल उनको। उपयोग नहीं है तो वो हाँ, समझ के राजी नहीं है। उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स इतने डिफरेंट होंगे कि वो समझने को तैयार ही नहीं है, तो वो समझने के लिए भी तो उपयोग की निर्मलता चाहिए। नहीं, एब्सोल्युटली मेरे ख्याल से बहुत बहुत डीप टॉपिक्स है ये, और द डिस्कशन कैन गो ऑन एंड ऑन एंड वी आर अप्रोचिंग 9:30, तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं तो देन वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन। एनी अदर थिंग्स फ्रॉम एनीवन फॉर नाउ? बट पीयूष जी, आपने बहुत अच्छे से बताया है। मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि इतने डिफिकल्ट टॉपिक, माना जाए तो बहुत सिंपल है टॉपिक, माना जाए तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, तो बहुत ही सुंदरता से आपने उसको डिस्क्राइब किया। दैट्स रियली ग्रेट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दैट इज एक्चुअली बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीयूष जी। ये अनएक्सपेक्टेड चीज नहीं थी। पीयूष जी हमेशा जब एब्सोल्युटली, समझाते हैं बहुत लॉजिकली जाते हैं, एंड दैट्स रियली ग्रेट ऑन हिज पार्ट। एब्सोल्युटली, और इतना सिंपल तरीके से, एंड हर में देयर वाज अ लेसन फॉर अस टू लर्न, जो चाहे वो अहिंसा था, परिग्रह था, मतलब एक नई बात पता चली हर में, एंड वेरी सिंपली। सो थैंक यू सो मच पीयूष भैया फॉर द सेशन टुडे। थैंक यू further adding your thoughts. Thank you. Thanks. and thank you Dr. Vibha for अरे नहीं being नहीं, for being the mentor for today's session and answering नहीं, the आई एम other नॉट एट questions ऑल द that मेंटर। तो बट ये है कि मेरे को वाईफाई ने बहुत मेरा साथ दिया। आई वॉज आउट, आई जस्ट रीच होम, आई जस्ट रीच होम 2 minutes बैक, तो बहुत साथ दिया, थैंक्स। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली, एंड वी वर प्रिविलेज। और मैं सबको एंड करने से पहले ये कहना चाहूंगी कि प्रोफेसर दीपक जैन, who's been the dean of Kellogg's and also INSEAD, यस, will be conducting the session on 6th of March, 8 p.m. This I think 7 p.m. or similar time. 7 So p.m. सभी Yeah. join करें, सभी join करें वो session. It would be just amazing. It is an honor for all of us, for him to be on a platform. Combine and Janin and Jito are organizing that session. So it would be just amazing to hear his views, who's seen perhaps the whole world and has also mentored the likes of Obama. So he told us straight to both of us that Obama, when he was trying to contest for the presidentship, and he also took training and mentoring from him. So it is great to have such a person talk to us. Do join, and in the next session, and then we'll have the Janin session in the subsequent one. And thank you everyone for attending this, and thank you again Piyush Bhaiya for such a great session. Thank you. Jai Jinesh. Thank you so much. थैंक यू, जय जिनेंद्र, Thank you. जय Thank you, जिनेंद्र। Dr. Vibha. Thank you. Jai Jinesh.